Assalamu alaikum students. This is Dr. Abid with you, and as you know, in the last class we missed our presentation, so I'm presenting on the same topic in today's this recorded lecture. So we will cover this capital budgeting mainly, but in capital budgeting, basically the concept starts from the investment decision rules. So we will continue this discussion today, and we will complete this discussion, and we'll create a session for questions uh, in next class. So as you can see, our chapter is about the topic is about the investment decision rules, where we will see different techniques which we will use to decide which decision technique we will use. So we have generally four decision techniques that we will use. We'll see here. This is the outline of our chapter. So first of all is the NPV, means net present value decision rule, and net present value decision rule is basically finding the net present value, because we are deciding about the future whenever we are about to take any project, whether we should take it or not. So we will decide on the basis of the cash flows. So first of all, we will find the cash flows, and then those cash flows, because these cash flows are occurring in the future time, so we will discount those cash flows to the zero time, means at the present time. So there are certain costs involved, like when you are going to start a new project, that new project will have certain cash outlay. For example, you want to increase your capacity, and for that you are going to uh, add a factory unit, and for that you have to take equipment for that, and you need to make installations and making ready everything for the production. So you need to initially have to pay a lot of money, so there is cash outflow. So cash outflow is normally we call initial cash outlay or initial outlay. Then there is the life of the project. During the life of the project, there are certain costs involved, and there are certain profits are involved, means revenues are coming, the costs are there, their taxes and many things. So we will see the net cash flows during the life of the project, and then in the end we will have the termination of that project, means the equipment that we have bought and the factory we have started, the equipment have completed its useful life. Now either we need to start a new project, we take a new equipment with a new useful life. So at that time we will discard or finish our old project. So for that, basically we'll sell each and everything, or we will discard, dismantle the machine and everything. So there are three phases: starting phase, life, during the lifetime, and then is the terminal phase. So there are certain cash flows, some cash flows are going outside, some cash flows are coming inside. So we will discount all the cash flows depending on the time period, in which time period we are taking that advantage, or we are suffering, not suffering, we are incurring the costs for that. So whatever we are doing, we will conclude that. So the net of that is called net present value. So this is called net present value decision rule. Then we'll see how we will use this, how we will use this how we'll use this rule, NPV rule. How we'll use this NPV rule, and then we'll see other methods for deciding. There are certain other methods, like there are payback period method, profitability index method, and internal rate of return method. So we will have a look on those methods also.
not writing. Okay, then we will see if we have more than one project at the same time, then we'll see in which project we should invest and which project we will leave. So among the projects we will select one project, so for that we will choose between the projects. There is certainly some criteria for that. Then we will evaluate the projects with different lives. Suppose we have two different projects, but both the projects have different lives. Means one project has 4 years life, another project has 7 years life. So we will evaluate the projects on the different life span, choosing among projects when resources are limited, and then putting it all together. This is the outline of our chapter, and our learning objectives will remain like this. Uh, First of all, we learn how to calculate the net present value. Then we will use net NPV rule to make investment decisions. Means at what point we will take decision on the basis of NPV, whether its value is 0, less than 0, or greater than 0. We will discuss this. Then we will understand the alternative decision rules. What are those decision rules that I just mentioned: payback period, internal rate of return, and profitability index. And also we will see what are their drawbacks. So then we will learn if there are mutually exclusive alternatives, means both projects, similar kind of projects, giving similar kind of benefits, then how we will decide which project we will select. So the next is then we evaluate the projects with different lives, as I spoke before. uh, then we will rank projects when the company's resources are limited. Means if there is resources, means when you have budget constraint. If you have budget constraint, means you have certain quantity of money, then you need to make choices according to your available resources. So that is actually your resource, so that it cannot take all positive NPV projects. Okay, so you cannot take all positive NPV projects. So because we cannot take all NPV projects, we have limited resources, we have less budget, we can take one or we can take two. So how we will rank them? And we will, when we rank them, we put 1 2 3 projects like this. So we'll take top projects, project number 1. If you have more resources, you can take project number 2. So depending upon your limited resources, you will select from those projects. Okay ji, we are starting now the main contents of our chapter. The first one is the NPV decision rule. So what is NPV? First we will see this. Net present value, it's short for net present value, and it means that most firm measure values in terms of net present value, that is in terms of cash today. Cash today means now, present. In the present time, you will see, if you invest in this project, how much the benefit you will have today. Means whatever you are getting in the future, you will convert all those cash flows, by discounting them in present. So what will cash you have today? So we will see in this way, and its formula will be all the present values of all the benefits minus present value of all the costs. Because as I told you before in the introduction, that we have certain costs and we have certain profits related to that. Means you are getting revenues, you are incurring some operating costs and other things. So it is net present value, means when you see the difference of benefits and cost, but depending on the time value of money, you are seeing it today. So that will be called net present value. Okay, we will check a simple example. Now we'll see this simple example. Let me finish this first. Okay,
सिंपल एग्जांपल इज इन एक्सचेंज फॉर $500 टुडे, यानी सपोज करें हमारे पास $500 है आज, तो आपकी फर्म अगर रिसीव करती है एक साल बाद $550 और करंट इंटरेस्ट रेट जो है 8% हो, तो इन दैट केस हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट क्या है, वी विल गेटिंग $550 इन 1 ईयर। वी आर गेटिंग $550 इन 1 ईयर और इंटरेस्ट रेट 8% है, और कॉस्ट क्या है, हम $500 आज दे रहे हैं, यानी हम आज इसको डिपॉजिट में डाल रहे हैं। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई, ये हमारा बेनिफिट हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स क्या होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स क्या होगा, $550 होगा, लेकिन एक साल के अंदर होगा। तो एक साल के अंदर होगा तो हम उसको डिस्काउंट करेंगे एक साल के ऊपर। तो कैसे डिस्काउंट करेंगे, डिवाइड बाय 1.08 इन 1 ईयर टुडे, 1 ईयर उसकी जो वैल्यू आज के उसमें निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी। हमने इसमें वो फॉर्मूला किया हुआ था लमसम वाला, लमसम में हम किस तरह से देखते हैं इसको। अच्छा जी, उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसको, यानी हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे एक साल का डिस्काउंट फैक्टर रख के, हम इसका नंबर ऑफ पीरियड्स को रख के, तो ये आ जाएगा 509.26, जबकि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी कॉस्ट है $500 की, और क्योंकि वो प्रेजेंट में है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू। So this amount you would need to put in the bank today to generate 550 in 1 year. So the net present value का मतलब ये है कि you are, अगर आज हम उसको कैश देखें तो हमें $9.26 का फायदा हो रहा है। तो we will go for this. Okay, we will continue this. You should be able to borrow $509.26 and use the 550 in 1 year to repay the loan. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इतना बारो कर सकते हैं, आप बारो कर सकते हैं इतना, और अगर आप बारो करेंगे 509 तो इसके ऊपर अगर आप 8% इंटरेस्ट लगाएंगे तो एक साल के अंदर इसका इंटरेस्ट मिला के ये $550 आपको पे करना पड़ेगा। हमने इसको रिवर्स कर दिया ना, हमने इसको रिवर्स कर दिया। हमने कहा कि अगर हम $509.26 आज लेते हैं अगर हम लोन के तौर पे, तो हमें एक साल में जो पे करना पड़ेगा वो $550 पे करना पड़ेगा। अगर हम इसकी फीचर वैल्यू निकालते हैं 509.26 की 8% के साथ, तो वो $550 ही निकलेगी। दिस ट्रांजेक्शन लीव्स यू विद 509.26 माइनस 500। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट्स हो गया और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट हो गया। तो आपके पास आज जो है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है वो 9.26 पॉजिटिव निकल रही है। एज लॉन्ग एज एनपीवी इज पॉजिटिव द डीसीएन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म। बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है ना। आपने 500 डाला, उसने 9.26 आपको कमा के दे दिया, ठीक है, आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो जो आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है एनपीवी की, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ऑफ द फर्म रिगार्डलेस ऑफ करंट कैश नीड्स आर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो हमारी वट एवर कैश नीड्स जो भी होंगी, हमारे पास जो नेट बेनिफिट आ रहा है वो इसका एनपीवी का, एनपीवी की फॉर्म में वो $9.26 आ रहा है, पॉजिटिव है, so we will go for this. So this is how the NPV decision rule works. Okay, एक प्रॉब्लम हम देखते हैं आफ्टर, अच्छा ये प्रॉब्लम का सिनेरियो है, आफ्टर सेविंग $1,500 बाय वेटिंग टेबल्स यू आर अबाउट टू बाय अ 50-inch टीवी। आप की सेविंग है $1,500 की, ठीक है, आप वेटिंग टेबल्स के ऊपर काम करते रहे, तो आप बाय कर सकते हैं 50-inch टीवी को। यू नोटिस दैट द स्टोर इज ऑफरिंग 1 year सेम एज कैश डील। तो आपने देखा जहां से टीवी आप बाय करते हैं वो वो एक ऑफर दे रहे हैं आपको कि आप जो है एक साल में आप प्राइस पे करें, ठीक है, टीवी की, टीवी आज ले जाएं और आप एक साल में टीवी की वैल्यू जो है आप दे दें जो आज उसकी वैल्यू बनती है। यू कैन टेक द टीवी होम टुडे एंड पे नथिंग अंटिल 1 year फ्रॉम नाउ व्हेन यू विल ओव द स्टोर द $1,500 परचेज प्राइस। तो एक साल के बाद आपके ऊपर ड्यू होगा कि आप वो $1,500 पे करें, ठीक है। इसका मतलब है टीवी आप फ्री ले जा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, आप पे करेंगे एक साल के बाद।
तो एक साल के बाद पे करेंगे तो आप $1500 उनको नहीं पे करें, बट यू हैव द $1500, तो आप क्या करेंगे, आप वो $1500 को कहीं किसी अकाउंट में, किसी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, ठीक है। इफ योर सेविंग अकाउंट अर्न्स 5% पर ईयर, आपका बैंक के अंदर अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें अगर आप ये पैसे रखते हैं तो आपको हर साल 5% उसके ऊपर मिलता है, वट एवर अमाउंट यू आर पुटिंग इन योर अकाउंट। व्हाट इज द एनपीवी ऑफ दिस सर्वर? शो दैट इट्स एनपीवी रिप्रेजेंट्स कैश इन योर पॉकेट, ठीक है। आपने शो करना है कि एनपीवी आपको रिप्रेजेंट करती है आपकी, जो आपके पास पैसे हैं, आपकी पॉकेट में है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में, समझ लो, ठीक है। इसको कैसे प्लान करेंगे हम? यू आर गेटिंग समथिंग वर्थ 1500 टुडे, जो कि टीवी है, एंड इन एक्सचेंज विल नीड टू पे 1500 इन 1 ईयर। तो एक साल में आपने $1500 पे करने हैं। थिंक ऑफ इट एज गेटिंग बैक द 1500 you thought you would have to spend today to get the TV. We treat it as a positive cash flow, ठीक है। आप ये समझें कि $1500 आपने देने थे ना आपको, यानी जो टीवी आपने लिया, आपने टीवी के पैसे पे कर दिए, ऐसे समझें, और टीवी के पैसे जो पे किए उन्होंने वापस कर दिया आपको, समझें। आपको $1500 दे दिए एक साल के लिए, उन्होंने कहा आप एक साल बाद यही अमाउंट हमें आके पे कर दीजिएगा। तो ये आपके पास एक तरह से कैश का इनफ्लो हुआ $1500 का, और एक साल के बाद आपने क्या करना है, आपने वही $1500 उनको दे देना है, वो फिर आपका आउटफ्लो होगा। इनफ्लो जो आपका है वो पॉजिटिव साइन के साथ शो हो रहा है, और नेगेटिव साइन के साथ आपका कैश आउटफ्लो शो हो रहा है, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, प्लान करते हैं इसको। प्लानिंग चल रही है। द डिस्काउंट रेट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट इन 1 ईयर इज योर इंटरेस्ट रेट। जो आपके सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है वो 5% है। यू नीड टू कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है उसकी, जो आप पे कर रहे हैं एक साल के बाद, वो $1500 है इन 1 ईयर। उसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टू द बेनिफिट टुडे। आज आपको $1500 मिल रहा है, तो उसके साथ आप उसको कंपेयर कर लेंगे। ये देखें, ये आपका एनपीवी ऑफ बेनिफिट्स आ गया, और ये एनपीवी ऑफ कॉस्ट आ गया। कॉस्ट को आपने निकाल के देख लिया कि एक साल में आपने जो पैसे पे करने हैं उसकी आज क्या वर्थ बनेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। जो आप एक साल के बाद पे करेंगे $1500, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1428.57 आज उसकी वैल्यू है। तो यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ $71.43। इसका बेनिफिट आप ले रहे हैं आज के दिन में। एनपीवी इसका ये आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, जो आपने अमाउंट ली थी, आपने क्या किया उस अमाउंट को, यू पुट दैट अमाउंट इनटू एन अकाउंट वेयर यू कैन गेट 5% इंटरेस्ट। सो यू कुड टेक 1428.57 ऑफ द 1500, ठीक है। यू हैड सेव्ड फॉर द टीवी। आपने टीवी के लिए 1500 लिए थे, उसमें से आपने 1428.57 आपने पे कर दिया आज के दिन में, अगर उसकी वैल्यू देखते हैं, जो कि एक साल के बाद 1500 होगी। एंड पुट इट इन योर सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट इन 1 ईयर इट वुड बी, अगर यही अमाउंट आपके पास होती और इसको 5% इंटरेस्ट के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर देते, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू भी यही बननी थी, ठीक है, $1500। Enough to pay the store. The extra 71.43 is money in your pocket to spend as you like. तो ये आपकी सेविंग है, जो आपके अकाउंट में बच जाएंगे ये पैसे, ठीक है। और पुट टूवर्ड्स दी स्पीकर सिस्टम, माइट बी, अगर आप साउंड सिस्टम लेना चाह रहे हैं अपने उसके लिए, तो यू कैन गेट दैट साउंड सिस्टम, ठीक है। अब इसकी वैल्यूएशन देख लें। बाय टेकिंग द डिलेड पेमेंट ऑफर, we have extra net cash flow of $71.43 today. If we put $1428.57 in the bank, it will be just enough to offset our $1500 obligation in the future. मतलब कि आज के दिन में मैं अगर अपने बैंक के अंदर $1428.57 रख दूं अपने बैंक अकाउंट में, और मेरा बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी 5% उसके ऊपर पे कर रहा है, तो एक साल में वो वैल्यू बढ़ के 5% उसके साथ लग के वो बन जाएगी 1500, ठीक है। ये वो अमाउंट बन जाएगी जो मुझे एक साल के बाद मिलेगी। मैं वो अमाउंट जैसे ही 1500 बनेगी एक साल बाद, मैं वो निकाल के
जाके टीवी वाले को दे दूंगा जिससे मैंने टीवी लिया। तो मेरे पास तो 1500 थे सेविंग आज के दिन में, तो बाकी के जो पैसे हैं $71.43 वो मेरे पास फ्री मनी है जो मैंने उस ऑफर से अर्न कर ली, जो मैंने एक साल में उनको पे करना था। ठीक है, तो offset our $1500 obligation in the future, therefore this offer is equivalent to receiving 71.43 today without any future net obligations। यानी ये आप इसको अदरवाइज अगर देखें तो you can take it as the discount। तो उन्होंने एक तरह का आज के दिन में अगर वो कैश डिस्काउंट देते हैं हमें 71.43 का, तो ये बिल्कुल उसके इक्वल है इनकी ऑफर। तो एनपीवी को हमने थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर देख लिया। ठीक, उसी तरह की एक सिमिलर एग्जांपल और है। इस एग्जांपल को आपकी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, उन पे आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, बिल्कुल, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज है, इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट है। इसको आप देख लीजिएगा, उसी तरह से उसने फाइंड किया है, उसी तरह से वैल्यू किया। ठीक है, नाउ विल सी द लॉजिक ऑफ द डिसीजन रूल व्हेन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं कोई भी, कि हमने कहीं किस चीज़ के अंदर कुछ इन्वेस्ट करना, पैसे डालना जिससे हमें कोई अर्निंग होगी, तो हम क्या करते हैं, टेक द अल्टरनेटिव्स विद द हाईएस्ट एनपीवी विच इज इक्विवेलेंट टू रिसीविंग इट्स एनपीवी इन कैश टुडे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हम हाईएस्ट एनपीवी वाले को ले लेंगे, और हाईएस्ट एनपीवी को लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास, यानी आप एनपीवी का मतलब क्या है, व्हाट एवर द बेनिफिट यू आर रिसीविंग इन फ्यूचर, हम उसका इक्विवेलेंट देख रहे हैं कि आज अगर उसको कैश में कन्वर्ट किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, रिसीविंग इट्स एनपीवी इन कैश टुडे। ठीक है, कैश टुडे जो है आप उसको साथ उसको रिप्लेस करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनपीवी मीन्स द कैश टुडे, वट एवर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ सर्टन प्रोजेक्ट विल बी इवेल्युएटेड बाय द कैश टुडे, इक्विवेलेंट कैश टुडे, तो वो उसको हम एनपीवी कहते हैं। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है, अच्छा, व्हाट दिस इंप्लाइज, एनपीवी डिसीजन रूल इंप्लाइज दैट वी हैव, क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो यू नीड टू एक्सेप्ट, आपकी फर्म वैल्यू बढ़ रही है ना हमारे फाइनेंस के अंदर, जो ओवर आर्किंग जो एक हमारा गोल है वो ये है कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर आ रहा है, एज अ सीएफओ, हम अपनी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। तो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना, इंक्रीज हो रही है हमारी फर्म की वैल्यू, तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। एक्सेप्टिंग देम इज इक्विवेलेंट टू रिसीविंग देयर एनपीवी इन कैश टुडे। एनपीवी का मतलब क्या है, कैश टुडे में आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो आप उससे अपनी फर्म की या कॉर्पोरेशन की अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर वो नेगेटिव हो तो फिर क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस है हमारा। कैश टुडे के अंदर नेगेटिव है, यानी आउटले है उसका, इसका मतलब हमें नुकसान है। नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स को हम रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग देम वुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, यानी हम कहते हैं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर हमने अपनी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज, क्या जो वैल्यू है उस पर भी नहीं रहने दे रहे, उससे कम कर रहे हैं, तो हम इसीलिए उसको नहीं लेंगे। वेयर एज रिजेक्टिंग देम हैज़ नो कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारा कोई कॉस्ट नहीं होगा, एनपीवी इक्वल टू जीरो ही रहेगा। अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो एनपीवी जीरो रहा ना। तो अगर जीरो आ जाए तो फिर क्या करेंगे, एनपीवी जीरो आ जाए तो फिर वो आपके लिए इनडिफरेंट सिचुएशन होगी, आप चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो उसे रिजेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास कोई अल्टरनेट प्रोजेक्ट है जिसकी पॉजिटिव एनपीवी है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट की जीरो एनपीवी के साथ आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी फिर अदर रीजंस हो सकती हैं आपको उसको एक्सेप्ट करने की। ठीक, अच्छा जी, एक पॉइंट हमारा कवर हो गया, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया जी, यूजिंग द एनपीवी रूल। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल तो अभी देखी है। ठीक है, कैसे करेंगे जी, ऑर्गेनाइजिंग द कैश फ्लोज। सबसे पहले आप कैश फ्लोज को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और जब कैश फ्लोज आपके बन जाएंगे, मीन हर पीरियड के अंदर क्या कैश फ्लो बन रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है,
कैश फ्लोज बन गए, फिर आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है एनपीवी को। एनपीवी को कंप्यूट करने के लिए आपको डिस्काउंट रेट चाहिए, तो डिस्काउंट रेट आप देखेंगे और फिर उस डिस्काउंट रेट को लेते हुए आप उसका एनपीवी कंप्यूट कर लेंगे। टेक इट और लीव इट डिसीजन इन द ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। आप अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको टेक कर लेंगे, या फिर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे उसने ये एक एग्जांपल दी है, ठीक है, एग्जांपल दिया, फर्टिलाइजर कंपनी कैन क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एट अ लार्ज सेविंग्स ओवर द कंपनीज एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कंपनी है, वो उनके पास जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक फर्टिलाइजर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जबकि जो अभी एग्जिस्टिंग है वो उतनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो ये उसका सिनेरियो हो गया, द फर्टिलाइजर विल रिक्वायर अ न्यू फैक्ट्री। तो नई फैक्ट्री आपको लगानी पड़ेगी नई फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दैट कैन बी बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $81.6 मिलियन, ठीक है। नई फैक्ट्री बिल्ड करेंगे तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट की जरूरत है, $81.6 मिलियन की जरूरत है। एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन द न्यू फर्टिलाइजर्स विल बी 28 मिलियन आफ्टर द फर्स्ट ईयर, यानी आपका फैक्ट्री लग गई, ऑपरेशनल हो गई, 1 साल की प्रोडक्शन उसकी होगी, तो 1 साल की प्रोडक्शन के बाद आपको उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को साल के बाद देखते हैं, फिजिकल ईयर के बाद देखते हैं, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट, एंड विल लास्ट फॉर 4 ईयर्स। तो 4 साल तक आपका बेनिफिट रहेगा कितना, 28 मिलियन, 28 मिलियन एवरी ईयर यू विल गेट द बेनिफिट आफ्टर फर्स्ट ईयर। और इनिशियली आपने $81.6 मिलियन आपने उसके ऊपर स्पेंड करना है फैक्ट्री को लगाने के लिए। तो जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो आपका आउटफ्लो है, जो आपके बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं वो 28 मिलियन के आ रहे हैं हर साल के अंदर। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इसका टाइमलाइन बना लें, ऑर्गेनाइज करें हम कैश फ्लोज को, ठीक है। फॉलोइंग टाइमलाइन शोज एस्टिमेटेड कैश फ्लो। सबसे पहले आपने $81.6 मिलियन जो है वो आपने स्पेंड किया है, तो ये आउटफ्लो हो गया माइनस का साइन के साथ, फिर प्लस 28 मिलियन है, फिर प्लस 28, फिर प्लस 28, फिर तो 4 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। 4 साल, इस सिनेरियो में 4 साल का जिक्र है तो 4 साल तक की हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप उसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। देखें 81.6 मिलियन जो था वो तो आप खर्च कर रहे थे ना, वो आज खर्च कर रहे हैं ना, तो उसको तो डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। 28 1 साल पे डिस्काउंट, 2 साल पे डिस्काउंट, 3 साल पे डिस्काउंट, 4 साल पे डिस्काउंट, ठीक है, इस सबको आपने डिस्काउंट किया है। अब इसको उसने क्या किया, फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया 28 ओवर देखें ये एक एन्युटी बन गई है। एन्युटी हमें पता है ना कि एक जैसे कैश फ्लोज होते हैं, आइडेंटिकल कैश फ्लोज और आइडेंटिकल टाइम पीरियड्स के अंदर। तो ये आइडेंटिकल कैश फ्लो आइडेंटिकल टाइम पीरियड्स के अंदर है 1 ईयर के अंदर, तो आपका ये 28 ओवर आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर 4। तो ये आपका बेसिकली अगर यहाँ एन कर दूँ मैं और यहाँ कैश फ्लो कर दूँ तो ये आपकी एन्युटी का फॉर्मूला। तो ये एन्युटी के फॉर्मूले के साथ आपने क्या कर लिया, इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये आपने, वी कैन ऑल्सो यूज एन्युटी फार्मूला, उसने यहाँ पे लिखा भी है, हम एन्युटी फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो देखें इसको, if the company's cost of capital is 10%, अगर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो फिर आपका आर जो है वो 10% होगा। आर, ये जो आर भाई हमने देखा है, ये आर आपका 10% होगा। द एनपीवी इज 7.2 मिलियन। आप वो डाल के जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में 7.2 मिलियन आ रही है, यानी आप सारी जो आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं उन सबको आपने कैश टुडे की फॉर्म में अगर आप लेके आए तो आपकी फर्म की वैल्यू 7.2 मिलियन से बढ़ रही है। सो व्हाट वी विल डू एंड दे शुड अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, हम ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एनपीवी प्रोफाइल क्या है जी, एनपीवी डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो डिस्काउंट रेट हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्काउंट रेट कम होगा, ज़्यादा होगा, उससे आपकी एनपीवी या प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी निकलती है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। एनपीवी प्रोफाइल ग्राफ्स द एनपीवी ओवर अ रेंज ऑफ डिस्काउंट रेट। तो आपका डिस्काउंट रेट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आपकी एनपीवी की वैल्यू भी चेंज होती है। बेस्ड ऑन दिस डाटा द एनपीवी इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द डिस्काउंट रेट्स आर लेस देन 14%। तो अगर आपका डिस्काउंट रेट 14%
से 14% भी हो जाता है तो 14% पे जाके ये प्रोजेक्ट आपका पॉजिटिव कैश टुडे नहीं देता। ठीक है, इसका यहाँ ग्राफ दिया हुआ होगा, ये देखेंगे ग्राफ दिया हुआ है इसका, इस ग्राफ को देखें मेरा गौर से, देखें मेरा गौर से, ये देखें 14% पे, इस पे एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, ये आपके डिस्काउंट रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ठीक, और आपके इस साइड पे क्या है, ये एनपीवी है इस साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे उसने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया है, जीरो के ऊपर क्या है जी, 30.4 मिलियन एनपीवी है आपका। ठीक है, जीरो पे आपका 30.4, ये है ना, जीरो पे ये है 30.4 है। फिर ऐसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे 2% के ऊपर, आप देख लें यहाँ आप लाइन ड्रा करें, 2% की यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक, तो ये देखें ये क्या है, ये आपका यहाँ पे बनता है 25 मिलियन डॉलर। सो इन द सेम वे मूव करते जाएं, या आपका जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता चला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे ही आपकी एनपीवी रिड्यूस होती चली जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट में जिसकी अभी हमने कैलकुलेशन किया उसमें हमने कहा था कि हमारा डिस्काउंट रेट 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है। ठीक है, तो इस पे आपने ये कर लिया, यहाँ इसने IRR लिखा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14% होगा, तो आप इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आगे आ रहा है तो वहाँ मैं फिर आपको बता दूंगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। ठीक है, किस तरह से इसको करते हैं, बल्कि आ ही गया ये। ठीक है, यहीं पे आ गया, मेजरिंग द सेंसिटिविटी विद IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप इसकी सेंसिटिविटी को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करते हैं, इफ यू आर अनश्योर ऑफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट, अगर आपको पता नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है आपका। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि आपको फंड्स चाहिए, आपको फंड्स जो चाहिए उसकी कॉस्ट क्या होगी, यानी क्या आपको पे करना पड़ेगा, आपको कोई भी कैपिटल अरेंज करने के लिए एक बड़ा चंक जो है फिनेंस का, वो अरेंज करने के लिए जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलग से जो है ना एक पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप सेपरेटली किसी और उसके अंदर देखेंगे, कोर्स के अंदर। आपके इस कोर्स के अंदर तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका नेक्स्ट जो कोर्स आएगा फिनेंस का उसके अंदर कवर करेगा। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल को जो है ना फिनेंसिंग को रेज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें से आपके जो है ना प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है, आप प्रेफर्ड स्टॉक से कैपिटल रेज कर सकते हैं, कॉमन स्टॉक से कर सकते हैं, आप डेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, डेट के अंदर भी फिर डेट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप बॉन्ड्स इशू करके कर सकते हैं, आप बैंक से ले सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का एवरेज निकालते हैं, तो जो एवरेज होता है सबका उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अमूमी तौर पे हम उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो उन सब की एवरेज निकालते हैं, अगर आप सब जगह से आप निकाल रहे हैं फिनेंसेस कुछ कुछ, या आप एक ही जगह से निकाल रहे हैं, जहाँ से भी आप निकाल रहे हैं तो उसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, लाइक हमने देखा फैक्ट्री को आपको चलाने के लिए आपको कितने मिलियन डॉलर्स चाहिए थे, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो अगर आप इन फंड्स को अरेंज करते हैं तो उसको अरेंज करने के लिए जो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट यू कैन से, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर वो कहता है कि आप अनश्योर हैं, आपको पता नहीं है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एस्टिमेट क्या है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन हाउ सेंसिटिव योर एनालिसिस इज टू एरर्स इन दिस एस्टिमेट। तो आप इस सेंसिटिविटी के साथ जब आप देखते हैं, IRR के साथ सेंसिटिविटी को देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो आप ये चेक करते हैं कि कितना आपका मिस्टेक हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपका, आपका वो रेट ऑफ रिटर्न जिस पे आपका आपके बेनिफिट और कॉस्ट दोनों बैलेंस कर जाते हैं, ब्रेक इवन जहाँ पे आ जाता है, वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था अल्टरनेटिव रूल्स वर्सेस एनपीवी रूल।
ठीक है। अब वो जो कहता है कि जो दूसरे रूल्स हैं, हमने तो अभी एनपीवी रूल देखा ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू का रूल देखा, हम ये देखते हैं। अच्छा, ये सेंसिटिविटी का मतलब ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ये पीछे हमने पढ़ा था ना कि भाई हम क्या हमने कहा कि 14% से तक जो है, यानी इससे नीचे नीचे जो है, यानी 13% पे या 13.75 पे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी एनपीवी की। 14 पे ज़ीरो हो जाएगी, 14 से ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपकी इसकी जो एनपीवी है वो नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। तो नेगेटिव आएगी तो वो तो फिर फर्म की वैल्यू तो मैक्सिमाइज नहीं हो रही ना, वो तो आप रादर डिक्रीज कर रहे हैं उसको। तो वो उस प्रोजेक्ट को आप नहीं लेंगे। ये सेंसिटिविटी को आप चेक कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आईआरआर के साथ। आईआरआर वो पॉइंट है जहां पे आप ये देखते हैं कि आपके बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जिस डिस्काउंट रेट के ऊपर जीरो हो जाती है, वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास एक पैमाना बन गया ना, आपके पास एक यार्ड स्टिक बन गई कि इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी सेंसिटिविटी को हम उसके साथ चेक करेंगे अगर हमें नहीं पता तो, कि क्या होना चाहिए। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट मस्ट बी लेस देन योर आईआरआर। अच्छा, the alternative rules versus NPV rule. When evaluating alternative rules for project selection, understand that alternative investment rules may or may not give the same answer as the NPV rule. ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट भी सेम है। इधर तो हम क्या निकाल रहे हैं, कैश टुडे निकाल रहे हैं ना। तो दूसरे मेथड्स के अंदर आप जो कैश टुडे निकालेंगे हो सकता है उनकी वैल्यू डिफरेंट आए उससे। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट रूल्स हैं तो उनकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। व्हेन द रूल्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों रूल्स आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं और डिफरेंट डिसीजन की तरफ आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रायोरिटी जो है वो हमेशा एनपीवी के मेथड को देंगे। एनपीवी के मेथड को आप हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब अल्टरनेटिव रूल्स को हम देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल इज पे बैक रूल। ठीक है, ये जिसको पे बैक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, पे बैक रूल या पे बैक पीरियड कहते हैं। इसमें हम पीरियड चेक करते हैं, हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो हमें कितने पीरियड्स में या कितने सालों के अंदर हमें वापस मिल जाएगी। बेस्ड ऑन द नोशन, जो आइडिया है दैट द अपॉर्चुनिटी दैट पेज बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्विकली इज गुड आइडिया। इसके मुताबिक हम ये देखेंगे जो हमें जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो स्पेंड किया है वो जितनी जल्दी वापस करेगा उतना ही वो अच्छा प्रोजेक्ट होगा। जितना टाइम कम होगा रिटर्न का वो उतना अच्छा होगा। ये इसका क्राइटेरिया होगा। ठीक है। Calculate the amount of time it takes to pay back the initial investment called the payback period. ठीक है। Accept the project if the payback period is less than a pre-specified length of time. यानी आपने खुद से सेट किया हुआ है कि यार इसका payback period से फॉर एग्जांपल 5 years होना चाहिए। तो अगर वो 5 या 5 से कम में आपको वापस करता है पैसे आपका प्रोजेक्ट, तो then you will take it, otherwise you will not take it. Reject the project if the payback period is greater than that of pre-specified length of time. आपने पहले से एडजस्ट किया हुआ है ना कि भाई मुझे अगर 5 साल में पैसे मुझे वापस मिल जाएं तब तो है ठीक, अदरवाइज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपका बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है ज़्यादा। तो ये यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। फ्रेडरिक रिक्वायर्स ऑल प्रोजेक्ट्स टू हैव अ पे बैक पीरियड ऑफ 2 years। तो ऑलरेडी उसने बता दिया प्री स्पेसिफाइड टाइम क्या है, वो कहता है 2 साल के अंदर वापस आने चाहिए पैसे जो मैं लगाऊंगा। ठीक है। वुड द फर्म अंडरटेक द फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट अंडर दिस रूल। क्या उसे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट को लेना चाहिए इस रूल के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स उसने दिए हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के अंदर आपका जो इनिशियल आउटले है ये माइनस में 10,000 है, इसमें भी 10,000। इसमें ईयर 1 में 1,000 वापस आ रहा है, इसमें 5,000 वापस आ रहा है। इसमें ईयर 2 में भी 1,000 आ रहा है, इसमें ईयर 2 में 5,000 आ रहा है। इसमें सारे 5,000 हर साल में दे रहा है। इसमें 1,000 पहले 2 सालों में है, उसके बाद 8,000 है तीसरे साल में, और चौथे साल के अंदर आप देखें कितना है, $1 million वापस आ रहा है। ठीक है, और इसमें ये सेम। ठीक है, 4th ईयर में भी $5,000 ही वापस आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है पे बैक रूल के हिसाब से
जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जल्दी आपके रिटर्न करता है, और प्री स्पेसिफाइड पीरियड इसके अंदर 2 साल का है। तो इसमें 2 साल में तो ये कर रहा है, प्रोजेक्ट बी कर रहा है 5000 प्लस 5000, ये तो 2000 पे कर रहा है। तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रूल को फुलफिल कर रहा है, प्री स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो 4 साल तक ये प्रोजेक्ट आपको पे कर रहा है, तो ये 4 सालों में टोटल 20,000 पे करेगा, जबकि ये 4 सालों में 1 मिलियन 1 पॉइंट कितना 1.9, नहीं सॉरी 1 नॉट 1.9, 1 मिलियन एंड 10,000 पे करेगा। ये 8 9 10 1 मिलियन और 10,000 पे करेगा, जबकि ये 20,000 पे करेगा। लेकिन ये आपका रूल क्या बताता है कि बी को एक्सेप्ट कर लो, ए को जाने दो, क्योंकि प्री स्पेसिफाइड पीरियड आपके पास 2 साल है और 2 साल में यही रिटर्न कर रहा है। तो देख लें, इसकी वीकनेस तो यहीं पे सामने आ रही है कि टोटल आप देखें इसके रिटर्न कितना है प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट का टोटल रिटर्न कितना है और कितनी इसके अंदर वो है, मतलब सामने नज़र आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए था, लेकिन पे बैक पीरियड या पे बैक रूल ये बता रहा है कि ये ले लें। अच्छा आगे चलते हैं जी। In order to implement the payback rule, we need to know whether the sum of the inflows from the project will exceed the initial investment before the end of 2 years. ठीक है, 2 सालों में वापस होती है या नहीं। The project has inflows of 28 million per year and an initial investment of 81.6 million. अच्छा, जो हमारा फर्टिलाइजर वाला प्रोजेक्ट था पीछे जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि हमने पहले साल के अंदर भी 28 मिलियन, फिर दूसरे साल में भी 28 मिलियन है, ठीक है, और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 81.6 मिलियन की थी, 81.6 मिलियन की थी। तो 2 सालों में कितना आएगा, 6 मिलियन ही वापस आएगा ना। द सम ऑफ द कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 एंड 2 28 और 28 56 मिलियन वापस आ गया, विच विल नॉट कवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 81.6 मिलियन। तो अगर ये नहीं मिल रही है आपको, तो आपका प्री स्पेसिफाइड टाइम जो है वो तो 2 साल का है ना, इनफैक्ट इट विल नॉट बी अंटिल ईयर 3, तीसरे साल में भी 56 आएगा, तो फिर वो एक्सीड करेगा आपका 81 से, दैट द कैश इनफ्लोज एक्सीड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 84 मिलियन बन जाएगा तीसरे साल में भी आपको आप इंक्लूड कर लें। बिकॉज द पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट एक्सीड्स 2 ईयर्स, तो फ्रेडरिक विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसने पहले से सेट किया हुआ कि 2 साल में अगर वापस मिलेगा तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो अब आप देख लें इसमें, इसकी वैल्यूएशन देख लें। वाइल सिंपल टू कंप्यूट, इसमें सिंपल है कंप्यूटेशन, जस्ट आपने ऐड करके देखना। द पे बैक रूल रिक्वायर्स अस टू यूज एन आर्बिट्री कट ऑफ पीरियड इन समिंग द कैश फ्लोस, ठीक है। तो आर्बिट्री कट ऑफ पीरियड आप लगाएंगे, सम आप कर लेंगे कैश फ्लोज को। फर्दर मोर नोट दैट द पे बैक रूल डज नॉट डिस्काउंट फ्यूचर, आप इसमें देखें कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, कोई वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं है, किसी चीज़ को भी आप कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है। इंस्टेड इट सिंपली सम्स द कैश फ्लोज एंड कंपेयर्स देम टू द कैश आउटफ्लो, जो कैश आउटफ्लो आपका हुआ है उसके इक्वेट करना है आपने, और टाइम आपको प्री स्पेसिफाइड पहले दिया हुआ होगा। एक चीज़ इसके अंदर है कि प्री स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा। इन दिस केस फ्रेडरिक वुड हैव रिजेक्टेड अ प्रोजेक्ट दैट वुड हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इसमें देखें जो प्रोजेक्ट आपकी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, कितना 7 पॉइंट समथिंग था, 7 पॉइंट सम मिलियन था, तो उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। एनपीवी में वो कह रहा था कि इतनी हमारी वैल्यू बढ़ रही है, अगर आज के कैश के हिसाब से देखा जाए तो 7 मिलियन से कुछ ऊपर जो है आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, लेकिन हम यहाँ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देख लें ये इस तरह का एक और उसने दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसको हम नहीं देखते, इसको आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ये अदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोजेक्ट भी उसी का ही है मेरे ख्याल में, चलें इसको आप खुद लीजिएगा इन सबको, ठीक है। वीकनेस क्या है इसकी, अभी हमने सामने ही देख लिया क्या वीकनेस है। लेट्स सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर कर रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जितना टाइम हम कहते हैं टाइम पास होता है तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज करती है विद टाइम, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हमने इसको स्टडी किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत अच्छी तरह से। तो टाइम के साथ साथ आपकी वैल्यू बज़ाहिर तो इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन आपकी जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो रही होती है ना। जो आज $100 है वो एक साल बाद वो $100 की इक्वलेंट नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। तो आप इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड, ठीक है। आप ये भी नहीं देख रहे
कि आपके कैश फ्लोज जो है, जो आपने प्री स्पेसिफाइड टाइम लिया, यानी जैसे हमारे एग्जांपल में 2 साल था, तो 2 साल के बाद भी तो कैश आ रहा है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं टोटली, कि बाद में जो कैश आ रहा है तो उससे भी तो फायदा हो रहा है ना कंपनी को, तो उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो प्री स्पेसिफाइड आपने पीरियड लगा दिया, जिसकी वजह से आपने कट ऑफ कर दिया, बाकी के कैश फ्लोज को आप देख ही नहीं रहे डिसीजन करते हुए। लैक्स अ डिसीजन क्राइटेरियन ग्राउंडेड इन इकोनॉमिक्स। तो आपका जो डिसीजन है वो किसी प्रिंसिपल पे ना ग्राउंड नहीं करता, बेस नहीं करता, ठीक है, इस वजह से भी ये ठीक नहीं है। सो हमने एक अल्टरनेट मेथड देखा, पे बैक रूट, जिसमें हमने पे बैक पीरियड निकाला, उसमें प्री स्पेसिफाइड टाइम था, प्री स्पेसिफाइड टाइम लेके हमने देखा उस टाइम में अगर वो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं करते। फिर हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं किया गया इसके अंदर, और जो कैश फ्लोज आपके प्री स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में है उनको भी आप इग्नोर कर रहे हैं, और कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है इसकी इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि फिनेंस जो है ये इकोनॉमिक्स की ही फील्ड है। तो इसीलिए क्योंकि ये थ्योरीज इसकी हैं, वो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ही हैं, फिनेंस की थ्योरीज जो है। तो आप कहते हैं कि इसके पीछे कोई सॉलिड बेस नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसकी हमने देखी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक है आपकी अल्टरनेटिव टेक्निक, कौन सी है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की सेंसिटिविटी को देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, वहाँ हमने थोड़ा सा इसको देखा था, हम यहाँ इसको डिटेल के साथ देख लेते हैं। टेक एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेयर IRR एक्सीड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल है, हमने अभी सेंसिटिविटी में भी देखा था, हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होना चाहिए IRR से, या उल्टा कह लें इसको, आप कहें IRR ज़्यादा होना चाहिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब क्या है? मतलब क्या है, अगर IRR आपका एक्सीड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इसका मतलब है आपको कोई बेनिफिट होगा उसका। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप उसका मतलब ये है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, किस परसेंटेज से आपकी वैल्यू, आपके जो ऑपरेशंस हैं, किस परसेंटेज से आप अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब यूं समझ लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अर्न कर रहे हैं 15% से, 15% से आपकी जो कैश की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, हर साल 15% आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वर्थ 15% इंक्रीज हो जाती है एक साल के अंदर। और आप कहते हैं कि यार इसको मुझे चलाने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी, मुझे लोन चाहिए इसके लिए, ठीक है, मेरे पास अपने पास तो पैसे नहीं है, लोन चाहिए, मैं सिंपल एग्जांपल कर रहा हूँ इसकी। तो लोन चाहिए, तो लोन पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% से इंक्रीज करती है, तो आप जब लोन लेंगे तो आप देखेंगे कि लोन आपको 15% से कम पे मिले तो फिर तो है फायदा। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन मिल गया 10% पे, आपने 15% अर्न किया, 10% आपने बैंक को दिया जिससे लोन लिया था, या जिससे भी लोन लिया था उसको दिया, 5% आपको बच गया ना, उससे आपकी फर्म की वर्थ बढ़ गई 5% से। तो ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उससे आपकी कितने परसेंट के हिसाब से आपको उसका फायदा होता है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप उससे ज़्यादा की कॉस्ट पे अगर पैसे उठाते हैं, तो इसका मतलब आप अर्न करके ना सिर्फ आप वो पे करेंगे, टोटल जितना अर्न कर रहे हैं वो भी पे कर रहे हैं, प्लस अपनी जेब से भी कुछ दे रहे हैं, यानी कंपनी की जो अपनी इक्विटी है वो भी आप डिप्लीट कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ वो कम हो रही। तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का रूल है, ठीक है। तो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या देखेंगे, यू ऑलवेज सी दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड करना चाहिए। लेट्स सी इसकी वीकनेस क्या है। इन मोस्ट केसेस IRR रूल एग्रीज विद NPV फॉर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स। अगर आपका अकेला एक कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें तो आपका IRR और NPV यानी एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं। इफ ऑल नेगेटिव कैश फ्लोज प्रीसीड पॉजिटिव कैश फ्लोज, ठीक है, अगर तो आपके जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में हम करते हैं ना, उसके बाद आपके पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं। जैसे हमने फर्टिलाइजर की एग्जांपल में देखा कि हमने स्टार्ट में फैक्ट्री लगाई, 81 मिलियन की फैक्ट्री लग गई,
और उसके बाद 28 मिलियन के इनफ्लोज ही आ रहे हैं, यानी आपका नेगेटिव आउटफ्लो एक ही है। लेकिन अगर आपके नेगेटिव आउटफ्लो ज़्यादा हों, दरमियान दरमियान में भी हों, ठीक है, तो फिर ये एक वर्क नहीं करता वो कहता है। इन अदर केसेस यानी इसमें IRR वीक हो जाता है। इन अदर केसेस द IRR में डिसएग्री विद NPV, तो उसकी वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी। हम इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ उसने स्टैटिस्टिक्स दी हैं कि कौन सा रूल ज़्यादा पॉपुलर है। तो IRR और NPV तो हेड टू हेड है, तकरीबन 75% 76% है। लेकिन जो थ्योरी जो हमें बताती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे हमने पढ़ी और सारी चीज़ों को पढ़ी, वो फेवर हमें देती है कि NPV ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसीलिए उसने ये कहा भी सही कि जब आप कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि NPV को आपने लास्ट में आपने चुनना। आप बाकी तरीकों से भी चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, लेकिन अगर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर आप प्रायोरिटी जो देंगे वो NPV रोल को देंगे, ठीक है। पे बैक पे भी काफ़ी लोग काम करें, 57% पे बैक पे काम करें, ठीक है, और 76 IRR पे, NPV। तीन तरीके उसने बताए, अभी तक हमने यही तीन तरीके ही देखे। तो तीन तरीकों में जो हेड टू हेड हैं वो IRR और NPV हैं। ये जो कॉमन प्रैक्टिस है उसका एक ग्राफ उसने दिया है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं जी, समरी। सॉरी, समरी क्या है, वही आपकी एग्जांपल पीछे वाली को लेते हुए, NPV एट 10%, यानी 10% क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हमने डिस्काउंट रेट लिया था। तो 7.2 मिलियन के ऊपर आपका NPV आया था, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, ये फर्टिलाइजर का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें NPV आपने निकाला 7.2 मिलियन आया। तो आप कहते हैं कि 7.2 मिलियन चूंकि जीरो से बड़ा है, NPV हमने कहा था जीरो से बड़ी जो भी वैल्यू होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम कहेंगे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस बेसिस के ऊपर। पे बैक पीरियड में आपने प्री स्पेसिफाई किया था कि 2 साल में आपको पे बैक होना चाहिए। अगर 2 साल में पे बैक नहीं होगा तो फिर भाई आप ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है, ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें तो पे बैक 2 सालों में नहीं हो रहा बल्कि 3 साल में हो रहा है। तो प्री स्पेसिफाइड टाइम 2 ईयर था, आपका 3 ईयर में पे बैक हो रहा है। तो आपका चूंकि प्री स्पेसिफाइड से ज़्यादा पीरियड लग रहा है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे पे बैक रूल के हिसाब से। IRR आपका क्या है जी, IRR हमने देखा था इसका 14% था, और 14% चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से ज़्यादा है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दो रूल्स आपको बता रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लो, एक रूल बता रहा है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो। सेम एग्जाम्पल सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह की इसकी समझ। अब आप इसमें नई चीज़ें हम देखते हैं अल्टरनेट डिसीजन रूल्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, यानी वो जो बात हमने IRR की वीकनेसेस के अंदर देखी ना, कि अगर हमने कहा कि कैश आउटले जो है, यानी आपका कैश आउटफ्लो जो है वो स्टार्ट की बजाय दरमियान दरमियान में हो, तो फिर आपका IRR वर्क नहीं करता उस तरह से। लेट्स सी टू कंपीटिंग एंडोर्समेंट ऑफर ए सिंगल पेमेंट ऑफ 1 मिलियन अपफ्रंट, ठीक है। ऑफर बी क्या है, 500,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। आपको ऑफर है कि आपको एक सिंगल पेमेंट मिलेगी 1 मिलियन में अपफ्रंट, या फिर दूसरी ऑफर ये है कि भाई 500,000 मिलेंगे हर साल लेकिन 3 साल के लिए। तो 500,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 मिलियन बनता है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है जी, 10% है। तो आपकी जो टाइम लाइन बनेगी अपॉर्चुनिटी की वो क्या है जी, आप 1 लाख आज ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो एक तरह से आप इसको इसको हम फिट करते हैं सिनेरियो के अंदर, हम इसको सिनेरियो के अंदर फिट करते हैं, तो आप देखेंगे इसको कि इसका रिजल्ट क्या आता है NPV से और IRR से वगैरह वगैरह से। आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप लोन ले रहे हैं आप 1 मिलियन का, और आपने हर साल 500,000 वापस करना है, लेकिन 3 सालों तक वापस करना है, यानी आप 500,000 ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको देख लें। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इसको इस कैपिटल को आपने जो लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक से लिया है 10% के ऊपर, तो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है वो 10% उसका इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपके पास पॉजिटिव 1 मिलियन आया, फिर आपके पास 500,000 जा रहा है, सेकेंड ईयर में भी 500,000, थर्ड ईयर में भी 500,000 आपका जा रहा है। तो ये जा रहे हैं पैसे आपके,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं सामने, ये पैसे आपके जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे इसको, अब ये डिलेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो आप वापस कर रहे हैं वो बाद में वापस कर रहे हैं, नेगेटिव आउटफ्लोज आ रहे हैं आपके। लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। एनपीवी इसका निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। 10% है, 10% पे इसको सॉल्व कर लें, इसको एक्सेल में करेंगे तो इस तरह से करेंगे। रेट निकालना चाह रहे हैं ना आप, अच्छा इसका वो आईआरआर निकाल रहा है, वो आईआरआर निकाल रहा है कि 10% पे सही है या नहीं। आपने आईआरआर निकालना है, ये आर निकाल रहा है, वो कितना आर होगा तो ये बेहतर होगा, ठीक है। तो आईआरआर इसने निकाला जी, तो आईआरआर कितना निकला जी, आईआरआर निकला बड़ा ज़्यादा 23.38%। तो ये तो ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना का, 10%। तो क्या करेंगे, आईआरआर रूल क्या बताता है, आईआरआर रूल ये बताता है कि आईआरआर हमेशा एक्सीड करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर वो एक्सीड करता है तो इसका मतलब उसकी एनपीवी भी पॉजिटिव ही होगी। तो आप इस प्रोजेक्ट को ले लेंगे आईआरआर के हिसाब से, ठीक है। एनपीवी निकालेंगे इसका, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अकॉर्डिंग टू आईआरआर ऑप्शन ए इज बेस्ट, ऑप्शन ए आपके पास बेस्ट है। हाउएवर एनपीवी शोज दैट ऑप्शन बी इज बेस्ट। एनपीवी से अगर आप निकालते हैं 10% के ऊपर से तो फिर आपकी आता है वही जो आपका ए का ऑप्शन है, उसमें आप निकालते हैं तो आपका एनपीवी नेगेटिव आता है, ठीक है। टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट वी कैन शो एनपीवी प्रोफाइल। तो एनपीवी प्रोफाइल आप देखेंगे, एनपीवी प्रोफाइल क्या है, वो आप जो ग्राफ बनाते हैं पूरा, ये जैसे पीछे बनाया था, वो आप इसके एनपीवी प्रोफाइल देख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्ट आपका पॉजिटिव है और कहाँ से वो होना शुरू हो जाता है। ये एनपीवी प्रोफाइल आ गई इसकी, ठीक है। ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सारी, 23 पॉइंट समथिंग था तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव कर जाता है, ठीक है, या पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव कर जाता है। तो आप देखें, फॉर मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस आर अपफ्रंट एंड कैश इज रिसीव्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। इन दीज केसेस लो रेट इज बेस्ट, व्हेन कैश इज अपफ्रंट अ हाई इंटरेस्ट रेट इज बेस्ट। तो ये उसने उसका एक तरह से खुलासा कर दिया उसने, ठीक है, उसका उसकी समरी कर दी, ठीक। अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम, ठीक है, ऑन योर ग्रुप। मूविंग एड, अब अगर आपको कुछ ऐसी सूरत हाल भी मिल सकती है, अभी तो हमने ये देखा ना कि इसमें हम जो प्रोफाइल बनाते हैं, वो प्रोफाइल हमारी जो बनती है वो एक लाइन या कर्व की सूरत के अंदर बनती है, जो कि आपकी एक्स एक्सिस को, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक जगह से कट कर रहा है। लेकिन सूरत हाल ऐसी भी तो हो सकती है कि प्रोजेक्ट के लाइफ के दौरान आपकी कर्व बन जाए इंस्टेड ऑफ लाइन, ये इस तरह की कर्व के जो कि एक दफ़ा एक्स एक्सिस को कट करिए तो एक से ज़्यादा बार कट करके नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, यानी साइकिल्स में आ जाए। तो इन दैट केस आपके फिर आई आर एक से ज़्यादा हो जाएंगे ना, मल्टीपल आई आर आर बन जाएंगे आप, यानी बहुत एक से ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपकी बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों जीरो हो जाएंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। सपोज दैट कैश फ्लोज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल चेंज, ठीक है, चेंज हो गए। पीछे क्या था, 1 मिलियन अपफ्रंट था, फिर 500,000 पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में था, ठीक है। द कंपनी हैज एग्रीड टू मेक एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 600,000 इन ईयर 10, यानी 1 मिलियन मिला आपको, आपने 500,000 पे किया। इसको देख लेते हैं, आगे देखते हैं, ये टाइम बन 500,000 500,000 500,000 और उन्होंने कहा कि आपको 600,000 आपको हम देंगे ईयर 10 के अंदर। तो दरमियान में कुछ नहीं मिल रहा, ईयर 4 से लेके ईयर 9 तक कुछ नहीं मिला, ईयर 10 में आपको ये मिला। तो अब क्या होगा, एनपीवी ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज क्या होगी, आर निकालेंगे। इफ वी प्लॉट एनपीवी प्रोफाइल वी सी दैट इट हैज़ 2 आईआरआर। अब आप एनपीवी प्रोफाइल अगर बनाते हैं तो आपको क्या शो है, देखिए ज़रा, ये तो कमाल ही हो गया।
ये बन गई ऐसे कर्व जो 2 दफ़ा एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। नहीं, अब कैसे हैंडल करेंगे इसको? इसको हम कहेंगे कि इसके मल्टीपल आई आर आर है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम 10% लेते हैं तो 10% पे तो ये नेगेटिव दे रहा है आपको, लेकिन 10% से नीचे आपको पॉजिटिव दे रहा है। कहाँ पे? 5% से 5% से नीचे आपको पॉजिटिव दे रहा है, 5% से ज़्यादा नेगेटिव दे रहा है, और फिर आपको यहाँ पे तकरीबन 14% बनेगा। कितना बनेगा? तकरीबन 14% से ऊपर जो है 14%, और उससे ऊपर फिर पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब है इसमें आपके पास ये देखें, यहाँ पे उसने ये बनाया टेबल, ये बनाया 6% पे नेगेटिव है, 7 पे नेगेटिव है, 8 पे नेगेटिव है, 9, 10, 11, 12, 13, इन सब पे आपको नेगेटिव एनपीवी मिल रहा है, एनपीवी नेगेटिव मिल रहा है। अब क्या करें? कौन सा सिलेक्ट करें? इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप मॉडिफाई करते हैं। ऐसी सूरत में जब मल्टीपल आईआरआर आपके पास होते हैं फिर आप मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप निकालेंगे, यूज टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल आईआरआर। जब आपके पास एक से ज़्यादा आईआरआर हो, ऐसे कोई कर्व बन जाए जो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे से क्रॉस कर रही हो, तो आपने क्या करना है? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। कैसे करेंगे? कंप्यूट्स द डिस्काउंट रेट दैट सेट्स द एनपीवी मॉडिफाइड कैश फ्लोज टू 0। तो आप इसको मॉडिफाई कर देंगे कैश फ्लोज को। पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं? ब्रिंग ऑल नेगेटिव कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट एंड इनकॉर्पोरेट इनटू इनिशियल कैश आउटले, यानी उसको आप एडजस्ट कर लें। जो कैश आउटफ्लोज आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उनको क्या करें? उनको डिस्काउंट करके उनको स्टार्ट में लेके आएं, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको बाद में लेके जाएं। तो आपकी जो कर्व बन रही थी यूं करके वो स्ट्रेटन हो जाएगी। जब वो स्ट्रेटन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, लीव द इनिशियल कैश आउटफ्लो alone and compound all the remaining cash flows to the final period of the project. So let's see, हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक और प्रोजेक्ट उसने दिया है मल्टीपल उसके साथ ना, मल्टीपल आईआरआर के साथ। ठीक है, इसमें ये और है डिस्काउंट रेट 40% पे और 10% के ऊपर ये दिखा रहा है इस तरह से। अच्छा जी, हम कह रहे थे कि उसको हम हल कैसे करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे? ये देखिए, हमने मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई किया तो क्या बना? ये आपका आईआरआर एक सिग्नल बन गया। इसके ऊपर आपने उसकी वैल्यूज़ को जो नेगेटिव आउटफ्लोज थे ड्यूरिंग द लाइफ, यानी ईयर 1 के अंदर आपका नेगेटिव आउटफ्लो था 500,000 का, ईयर 2 के अंदर आपका था 500,000 का, ईयर 3 के अंदर आपका था 500,000 का। तो आपने क्या किया? इन तीनों को आप लेके आए स्टार्ट के अंदर, तीनों को डिस्काउंट करें, डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव में ही आएगी। डिस्काउंट करेंगे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, डिस्काउंट करके जो इसकी वैल्यू आई उन वैल्यूज को आप लेके आए उसके ऊपर, अपने एनपीवी के ऊपर। ठीक है, और वहां उसको ड्रा करना। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, इज इट एडवाइजेबल टू मॉडिफाई द कैश फ्लोज? क्या ये ठीक है? हमने कर तो लिया ऐसे, कैश फ्लोज को हमने क्या किया? उसने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली ना, जो नेगेटिव कैश फ्लोज थे, जो कैश आउटलेस थे, उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। क्या ये ठीक है? इट इज नॉट रियली एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्चुअल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं है ना, मॉडिफाइड है। ठीक है, इट डज नॉट सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आईआरआर व्हेन चूजिंग अमंग प्रोजेक्ट्स। तो सम टाइम ये कंफ्यूज करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगेन हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं? एनपीवी फाइंड कर लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर आईआरआर की वजह। ठीक है, वो आ गई इसकी एक और। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे जी? जहां पे एक जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट जस्ट पिक द प्रोजेक्ट विद अ पॉजिटिव एनपीवी, द प्रोजेक्ट मस्ट बी रैंक्ड एंड द बेस्ट वन इज चूजन। आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो आप क्या करेंगे? जिसकी एनपीवी ज्यादा आएगी उसके ऊपर रखेंगे।
जिसकी थोड़ी कम आएगी उसको नंबर 2 पे रखेंगे। तो आप रैंक करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, तो जो आपका हाईएस्ट एनपीवी दे रहा होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके पास वही जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास बजट कम है। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 मिलियन है, ठीक है। आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल $90 मिलियन लग रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में $95 मिलियन लग रहे हैं, ठीक है। बट यू हैव $100 मिलियन, आप किसी एक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो आप दोनों की एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा वर्थ बढ़ा रही है आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की, उसमें आप इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है क्या है, आप इसमें कर लें या इसमें कर लें, तो एक्सक्लूसिव है वो। तो आप किसी एक में करेंगे, उसके लिए आप रैंक कर देंगे, रैंक करके जो बेस्ट होगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर देंगे। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एनपीवी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास। अच्छा जी, सिनेरियो देखते हैं। यू ओन अ स्मॉल पीस ऑफ कमर्शियल लैंड नियर अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कमर्शियल लैंड का आपके पास जो है वो प्लॉट है। यू आर कंसिडरिंग व्हाट टू डू विद इट। यू हैव बीन अप्रोच्ड विद एन ऑफर टू बाय इट फॉर $220,000. You are also considering 3 alternatives. Uses yourself a bar, वहाँ पे अगर बार बना सकते हैं, कॉफ़ी शॉप, एक कॉफ़ी शॉप बना सकते हैं, एंड एन एपरल स्टोर, एपरल स्टोर भी बना सकते हैं, यानी गारमेंट स्टोर आप कह लें। यू एज्यूम दैट यू वुड ऑपरेट योर चॉइस indefinitely, eventually leaving the business to your children. आप ये समझते हैं कि भाई आप इसको अगर खुद अपने काम में लगा लेंगे तो ये ज़ाहिर है आपके बच्चों तक जाएगा, ठीक है, इनहेरिट हो जाएगा। हाँ जी, मूव करते हैं आगे जी, अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या है, इसी को सॉल्व करके दिखाया उसने। ठीक है, यू हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजेस। ये अभी हमारा सिनेरियो ही चल रहा है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बार के अंदर 400,000 की है, और कैश आउटफ्लो बार के अंदर क्या है, 60,000 का है पहले साल में, और फिर उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ है कैश फ्लो के अंदर 3.5% की, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 12%, ठीक है, जिस पे आप डिस्काउंट करेंगे उससे। कॉफ़ी शॉप के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, 200,000 की है, और इसका कैश फ्लो भी कम ही है, 40,000 का है, और इसमें ग्रोथ भी कम है, 3% की है, ठीक है। लेकिन इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम है, 10% है इसके अंदर। एपरल स्टोर के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 500,000 की है, इसका आउटफ्लो भी ज़्यादा है, 75,000 है, और इसमें भी ग्रोथ आपके पास 3% की है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें 13% है। अब आप बताएं, एक ही पीस ऑफ लैंड है ना, या तो आप बार बनाएंगे, या अपैरल बनाएंगे, या कॉफी शॉप बनाएंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इसी को कहते हैं, यानी किसी एक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेस स्कार्स हो गए ना आपके पास पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप कोई एक चीज़ बना सकते हैं। अब बताएं क्या चीज़ बनाएंगे, उसकी आपने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा एवरी ईयर, और फिर वो हर साल जो रिजल्ट मिलेगा वो कितने परसेंट से आपका ग्रो करेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास सामने आ गई। अब इसको प्लान लें जी, इसको प्लान करते हैं जी। सिंस यू हैव डेवलप ओनली वन प्रोजेक्ट, यू ओनली हैव वन पीस ऑफ लैंड, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कोई एक काम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल, तो व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप ये देखना चाहते हैं कि वर्थ किससे ज़्यादा बढ़ेगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की। यू नीड टू रैंक दैम बाई एनपीवी। ईच ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर सेलिंग द लैंड हैज़ कैश फ्लोज। ठीक है, आपके पास एक चौथी चॉइस भी है कि आप सेल कर लें, उसको सेल करते हैं तो 220,000 आपको मिलता है। ठीक है, तो उसके अलावा सब में कैश फ्लोज हैं, तो कैश फ्लोज को आप लेंगे, डिस्काउंट रेट भी आपके पास है, एंड दैट कैन बी वैल्यूड एज अ ग्रोइंग परपिचुअलिटी। तो फॉर द लाइफ टाइम, जैसे उसने कहा था कि आप बच्चों को इनहेरिट करेंगे बाद में, तो लाइफ टाइम में उसको चलेगा और उसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। सो फ्रॉम आवर प्रीवियस लर्निंग फ्रॉम चैप्टर 4, जो आपका ग्रोथ मॉडल था उसको देखें आप, स्टॉक वैल्यूएशन का, तो आप देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज क्या होंगी, CF1 ओवर R माइनस जी। तो परपेचुइटी को कैसे निकालते थे आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकालते थे, वो ऐसे ही निकालते थे ना। ठीक है,
तो फ्यूचर वैल्यू आप लिखते थे फ्यूचर वैल्यू ओवर आर माइनस जी, तो फ्यूचर वैल्यू आपका यहाँ कैश फ्लो है, ठीक है। जो आपकी स्ट्रीम बनती है कैश स्ट्रीम बनती है जो आपको हर साल मिलेगी फॉर इंडेफिनेट या ऑलवेज, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो उसको आप लिखते थे फ्यूचर कैश कैश स्ट्रीम, ठीक है, फ्यूचर कैश स्ट्रीम। तो यहाँ पे वो कैश फ्लो है। तो आप सी एफ वन ओवर आर माइनस जी, और उसमें से आप ये आपके बेनिफिट हो जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसको आप डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। सो मूविंग अहेड, देखें क्या हो रहा है। पहले के अंदर क्या है, बार के अंदर 60,000 आपको मिलने थे, और 12% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, 3.5% आपकी ग्रोथ थी, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी। तो इसमें 305.882 305,882 बनता है। इसमें कॉफ़ी शॉप का भी आपने निकाल लिया, ये 371 बनता है। अपैरल स्टोर का भी आपने निकाल लिया, ये 250,000 बनता है। तो अब आप इनको सबको रैंक कर लें, जिसकी एनपीवी ज़्यादा है उसको ऊपर लिखें, जिसकी कम है उससे कम है उसको नीचे लिखें, जिसकी सबसे कम है उसको नीचे लिखें, और नीचे सबसे नीचे आपका ये भी प्रेजेंट वैल्यू है बेसिकली आपकी। तो चारों ऑप्शन आपके पास आ गए। तो यू सी कि आपकी वर्थ सबसे ज़्यादा बढ़ रही है कॉफ़ी शॉप से, तो यू विल गो फॉर द कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप ले लें आप, उसी में आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देखें वैल्यूएशन इसकी हमने इसी तरह से की। ऑल द अल्टरनेटिव्स हैव पॉजिटिव एनपीवीज, बट यू कैन टेक ओनली वन ऑफ देम, so you should choose the one that creates the most value. Even though the coffee shop has the lowest cash flow, its lower startup cost coupled with its lower cost of capital, it is less risky, make it the best choice. ये वैसे नहीं कर सकते थे आप, ये एक टूल आपके पास है जिसके साथ आप कैलकुलेशन करके यू कैन असेस कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह की एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद देख लीजिएगा स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट चॉइसेस हैं, इसको आप खुद देख लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर स्केल चेंज हो जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का स्केल चेंज हो जाता है, तो उससे जो है हमारा जो IRR है उसका इम्पैक्ट भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर 10% हो IRR, तो उसका जो रिजल्ट 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे, उसका बिल्कुल डिफरेंट आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसको देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। आइडेंटिकल स्केल NPV ऑफ Maria's इन्वेस्टमेंट्स इन हर बॉयफ्रेंड्स बिजनेस। अच्छा, ये एक एग्जांपल है बुक के अंदर दी हुई है। उसमें ये था कि दो लोग हैं, एक मारिया है और एक उसका बॉयफ्रेंड है, मीन्स उसका फ्रेंड है, आप समझिए। तो वो दोनों मिलके एक ना वो बनाते हैं, बार बनाते हैं या एक स्टॉल लगाते हैं, उसे रजिस्टर कराते हैं, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारा कुछ है, ठीक है, वहाँ पे। तो बहुत सेम एग्जांपल है जैसे अभी हमने इसकी देखी है, जो पीस ऑफ लैंड थी और उसके ऊपर बार बनाना था, उसी तरह की एग्जांपल। तो इसमें देखें 60,000 का आपको जो है ना वो इनफ्लो आ रहा है, इनिशियली आप 10,000 जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको 3 सालों तक 60,000 मिलना है, उसकी एनपीवी निकाली है उसने, ये उसकी है इन्वेस्टमेंट एक एक प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा प्रोजेक्ट अगर वो लगाती है उसके अंदर भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, लेकिन इसमें रिटर्न आपका 5,000 का 3 सालों तक। और आप देखें इसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, इसमें भी 12% है, ठीक है, दोनों में 12% है। तो आप देखें आइडेंटिकल स्केल है, या आपकी इनिशियल आउटले सेम दोनों के अंदर, आपका जो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम, सिर्फ आपके कैश आउट इनफ्लोज जो हैं वो डिफरेंट है, एक में 6,000 है, एक में 5,000 है। तो जो 6,000 वाला है वो आपको दे रहा है 4,441, और जो 5,000 वाला है वो आपको रिजल्ट दे रहा है $2,009 का। सो लेट्स मूव ऑन विद द सेम।
तो आप IRR निकालेंगे ज़रा, उसका जो पहले वाला था 60,000 का, तो उसका IRR आपका आया 36.3, जिसके ऊपर आपका इससे कम के ऊपर आपको अगर रिटर्न मिलता है तो इट्स ओके, यू कैन गो फॉर दैट। और इसी तरह से आप IRR निकालेंगे दूसरे का जिसमें 5,000 आपको रिटर्न मिल रहा था, तो वो आया है, ये आया 36.3% और ये 23.4%। देखें वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो स्केल होता है ना, उसके साथ आपकी जो कैश इनफ्लोज हैं वो चेंज होते हैं, और कैश इनफ्लोज चेंज होने से आपकी रिजल्ट्स जो है ना चेंज हो सकते हैं, आपका IRR बहुत ज़्यादा चेंज होता है इससे। वो ये कहना चाह रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका चेंज हो जाता है। तो दोनों का दिया हुआ है, एक का ये आया, एक का ये आया, ठीक है। जबकि आपको दोनों के ऊपर क्या मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मिल रहा है, 12% मिल रहा है। तो 12% आपका इसके ऊपर ये रहा और इसका ऊपर ये रहा, तो ये आपकी कर्व बन रही है उसकी, जो आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी, उसका जो रिटर्न बन रहा है। तो आप इसमें करेंगे इन्वेस्ट जो ज़्यादा रिटर्न देगा, या इसमें करेंगे जो कम करेगा। जबकि आप IRR को कंपेयर करें तो आपका IRR इसमें भी 23.4% है, इसमें 36.4% है। तो जिसमें आपका IRR ज़्यादा बड़ा होगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उसमें आप जाएंगे। देखिए इसमें 23 है, इसमें 12 है, 23 और 12 को कंपेयर करेंगे तो और इसके साथ ही इसको भी कंपेयर करेंगे 12 और 36 को, यानी आप डिफरेंस निकाल के देख लेना, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा आएगा ये ज़्यादा बड़ा है, इसमें ज़्यादा फायदा है, इसमें ज़्यादा फायदा, या फिर NPV के हिसाब से देख लेंगे आप, ठीक है। चूजिंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, चेंज इन स्केल, ठीक है। मारिया realizes she can just as easily invest in 10 drones for the delivery business, यानी जो वो डिलीवरी करनी है, उसने डिलीवरी का बिजनेस है कि कोई चीज़ भी डिलीवर करनी है तो उसके पास ड्रोन्स है, तो वो ड्रोन्स को प्रोग्राम करती होगी, तो वो ड्रोन्स जाके वहाँ जाके डिलीवर करके आते हैं प्रोडक्ट में। ड्रोन आपको पता क्या होता है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा वो ड्रोन कैमरास के साथ टीवी के अंदर भी होती है, शूटिंग वगैरह होती है, ख़ासतौर पे जब ये पॉलिटिकल गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर। और उसके अलावा भी अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो तो आजकल जो यूट्यूब के ऊपर जो ब्लॉगर्स वीलॉगर्स हैं, वो भी जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके जो कैमरा है वो बहुत हाइट पे चला जाता है, तो वो ड्रोन होता है। ड्रोन एक तरह का हेलीकॉप्टर की तरह ही होता है, 4 क्वाड उसके वो होते हैं, ऊपर विंग्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर पे एक होता है ना, तो उस तरह से उसके 4 होते हैं, तो उसकी जो है ना वो बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, उसके साथ वो कैमरा अटैच कर देते हैं और उसके साथ वो शूटिंग करते हैं। तो द सेम थिंग इज़ बीइंग यूज इन यूरोप एंड US फॉर द डिलीवरी, ठीक है। तो ड्रोन को, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, तो बिल्डिंग्स के अंदर ड्रोन का जाना इज़ कंपैरेटिवली ईजी, ठीक है। तो वो आप बता देते हैं कि ड्रोन आया हुआ है तो आप डिलीवरी ले लें, तो आपकी कम्युनिकेशन होती है, तो वो उस तरह से आपसे उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये ड्रोन का बिजनेस है। जो दूसरा है उसका सेटअप कॉस्ट वुड बी 50,000 एंड एनुअल कैश आउटफ्लोज वुड बी 25,000। अब इसमें इनिशियल आउटले आपका 50,000 है और आपकी जो इनफ्लो है कैश के वो 25,000 के हैं हर साल। तो आप इसका NPV निकालते हैं, ये 10,046 आता है। अभी इसको हमने इसका आप देखें IRR कैसे आया, IRR वही आ गया जो पहले आ रहा था, जो पहले वाले बिजनेस में आ रहा था, ठीक है। चेंज इन स्केल, IRR इज अनअफेक्टेड बाय स्केल। स्केल चेंज किया ना आपने, स्केल क्या चेंज किया, पहले 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी आपकी, अब 50,000 की है। पहले आपको जो रिटर्न मिल रहा था वो 5,000 मिल रहा था, अब आपको 25,000 मिल रहा है, लेकिन आपका IRR सेम रहा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी लाइन ये बन रही है डिलीवरी की, ये IRR आपका निकला था किसका, ये नीचे वाले बिजनेस। आप देखें 12% पे अगर इसको आप लेंगे तो इसका रिजल्ट तो बहुत बेहतर है भाई, इसका तो NPV बहुत हाई आएगा। वाई लाइक दिस, तो इसका मतलब IRR आपको रिसीव करता है। सॉल्व द क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर मारिया फ्रॉम पे फिगर 8.8, वही फिगर है जो मैंने अभी दिखाई है, ठीक है। इसको
प्लान करें, द क्रॉस ओवर पॉइंट इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द एनपीवी ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स इक्वल। ठीक है, crossover point. We can find the discount rate by setting the equations for the NPV of each project equal to each other and solving for the discount rate. तो दोनों की अगर NPV सेम आ रही है तो उन दोनों को इक्वल करके आप निकाल लेंगे उनका डिस्काउंट रेट। तो किस डिस्काउंट रेट पे आप उसको लेके जाएंगे। इन जनरल वी कैन ऑलवेज कंप्यूट द इफेक्ट ऑफ choosing the delivery service over our boyfriend's business as the difference of NPVs at the crossover point is the difference is 0. Let's see इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं हम। ये इसकी कैलकुलेशन की हमने, ये इसकी कैलकुलेशन की, ठीक है, और ये इसकी कैलकुलेशन की। दोनों में आर को रहने दिया आपने, ठीक है, आर को रहने दिया आपने, इसको सॉल्व किया। सॉल्व किया तो क्या हुआ जी, कंबाइनिंग टर्म्स को कंबाइन कर दिया आपने। ये माइनस था ना, प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 10,000 बन गया, 50 माइनस 50,000 प्लस 10,000, ये माइनस 40,000 हो गया। ये 25,000 था, नीचे 1 प्लस आर था दोनों की, तो 1 प्लस आर को अगर कॉमन निकालें, 1 और 1 प्लस आर को कॉमन निकालें तो 25,000 माइनस 6,000 19,000, तो ये आपकी एक नई स्ट्रीम बन गई। इसको आप कह दें कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है, यानी दोनों का एनपीवी आपका कब सेम होगा एनपीवी। ठीक है, वो कौन सा रेट ऑफ रिटर्न होगा या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा जिसपे दोनों का रिटर्न, दोनों का एनपीवी सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। एज यू कैन सी, सॉल्विंग फॉर द क्रॉसओवर पॉइंट इज जस्ट लाइक सॉल्विंग फॉर द आईआरआर। तो आपने आर ही निकालना है ना, तो आर निकालें आप स्प्रेडशीट के जरिए निकाल लें। आपका आर आ गया 20.04। ठीक है, 20.04 के ऊपर दोनों आपके प्रोजेक्ट्स सेम एनपीवी देंगे, सेम एनपीवी देंगे। जस्ट एज द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट tells us the value impact of the taking the project, so the difference of NPV of two alternatives tells us the incremental impact of choosing one project over another product. The crossover point is a discount rate at which we would be indifferent between the two projects because the incremental value of choosing one over the other would be zero. अगर दोनों का NPV सेम सेम हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आप किसी को भी ले सकते हैं, इनडिफरेंट, आप ये प्रोजेक्ट ले लें या वो ले लें, दोनों का आप कह लें कि रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये एक और प्रॉब्लम है, कंप्यूटिंग द क्रॉसओवर पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्व द क्रॉसओवर पॉइंट फॉर द फॉलोइंग टू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ये है, इसमें 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें 10,000 की है, इसका कैश फ्लो 5,000 का है, इसमें 4,100 का है, ओवर 3 ईयर्स, ईयर 1 2 और 3। ठीक है, इसका प्लान कैसे करेंगे इसको। क्रॉसओवर पॉइंट इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द एनपीवी ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स इक्वल। ठीक है, क्रॉसओवर पॉइंट कौन सा होता है जिसमें दोनों का एनपीवी आपका इक्वल हो जाता है। जब एनपीवी दोनों का इक्वल हो जाएगा तो दोनों के एनपीवीज को अगर आप माइनस करेंगे तो जीरो आएगा ना, तो उसको आप जीरो कर देते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। एनपीवीज की दोनों की वैल्यूज निकालते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके उनकी एक नई आपकी स्ट्रीम बन जाती है सारी, तो उसके ऊपर आप जाके आप रेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड द डिस्काउंट रेट बाय सेटिंग द इक्वेशंस फॉर द एनपीवी ऑफ ईच इक्वेशन इक्वल टू ईच अदर एंड सॉल्विंग फॉर द डिस्काउंट रेट, तो जीरो हो जाएगा। इन जनरल वी कैन ऑलवेज कंप्यूट द effect of choosing project A over project B as a difference of the NPVs at the crossover point, the difference is zero. crossover पे difference zero है दोनों का। ठीक है, तो आपने ये किया, देखें एक का लिखा दूसरे का लिखा, दोनों को सॉल्व किया, ये आया आर निकाला, आर निकाला तो आपका आर निकला 16.65। यानी अगर आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है, क्या हम इसे कहेंगे, ये दोनों प्रोजेक्ट्स इक्वल हो जाएंगे अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 16.65 हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, या यूं कह लें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर इनका 16.65 हो दोनों का, तो फिर इस एक ही बात है बेसिकली, तो फिर इनका जो एनपीवी है वो सेम हो जाएगा दोनों का। ठीक है,
एक ही बात है, दोनों की एक ही बात है। सेम तरीके से उसने इसको एवेल्यूएट किया, इसको आप देख लीजिएगा। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो यू मे आस्क ऑन द ग्रुप। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज, ठीक है, हमने स्केल देख लिया, क्रॉसओवर देख लिया, अब हम देखेंगे टाइमिंग को, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो क्या है जी? सपोज जेवियर कुड सेल द इंटरनेट कैफे बिजनेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर 40,000, शुड ही प्लान टू सेल इट? क्या उसे सेल करना चाहिए? अभी हमारे पास यहाँ सिनेरियो नहीं है, ठीक, सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो आएगा तो पता चलेगा, साहब आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो लेट्स सी, मूव अहेड, देखते हैं इसको। डिलीवरी सर्विस ये खड़ी, ये डिलीवरी सर्विस, ये क्रॉसओवर पॉइंट है, ये क्रॉसओवर पॉइंट 16.3 के ऊपर है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ये रहा है। यहाँ पे आप आके इंडिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे एनपीवी दोनों का सेम हो जाता है ना, दोनों का एनपीवी प्रोजेक्ट्स का, यानी इस प्रोजेक्ट का और इस प्रोजेक्ट का दोनों का एनपीवी सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पे ये दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, वो आपका उसके ऊपर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? 16.3 होगा, ठीक है। अभी जो स्लाइड हमने देखी थी डिलीवरी बिजनेस जो आपने देखा था, उसी की हम बात करें, तो उसी को कंटिन्यू करें, देखते हैं ज़रा। द बॉटम लाइन ऑन IRR, picking the investment opportunity with the largest IRR can lead to a mistake। आपको सम टाइम जहाँ पे IRR ज़्यादा बड़ा होगा, कहते वो आपको मिस्टेक भी लग सकती है उससे। इन जनरल इट इज़ डेंजरस टू यूज़ IRR इन चूजिंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स, सो ऑलवेज रिलाई ऑन NPV। आपको वो कहते हैं NPV पे ही रिलाई करना चाहिए, उस पर नहीं रिलाई करना चाहिए। दरमियान में एक स्लाइड आई थी, उसका लिंक बना नहीं है शायद, वो डिलीवरी सिस्टम वाला जो था वो दैट इज़ रन थ्रू मे बी इंटरनेट कैफे, इंटरनेट के थ्रू वो उसको शायद चला रहे थे। अच्छा जी, आई विल टेल यू लेटर ऑन, हाँ, इफ देयर इज एनी फर्दर confusion you may ask, हाँ। अच्छा जी, cash flows in thousands for network server options expressed as equivalent annual annuities, ठीक है। वो कहता है कि इसको अगर आप इक्विवेलेंट एनुटीज़ के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? एनुटी में कन्वर्ट करने के बाद देखें ये सेम रह रही है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसको उसने ईयर 1 के अंदर 5.202 5.02 5. इस ऐसे कर दिया, यानी इसको जो कैश था टोटल, आप देखें इसमें कितना था, 13 था ना, 13। अच्छा, इसको इक्विटी के अंदर उसने कन्वर्ट किया समवट। सो अच्छा, चलें हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल आ गई इसकी, यू आर अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्वर ए फ्रॉम टेबल 8.2, जो अभी हमने 8.2 में देखी है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है सर्वर ए की। When a third vendor approaches you with another option that lasts for 4 years, the cash flows for server C are given below. Should you choose the new option or stick with server A? सी के ऑप्शन ये है, ठीक है। इनिशियल आपका है 14,000 और फिर 1.2, यानी 1,200 हर साल, 4 साल तक के लिए आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस न्यू ऑप्शन टू सर्वर ए, वी नीड टू पुट सर्वर सी ऑन एन इक्वल फुटिंग बाय कंप्यूटिंग इट्स एनुअल कॉस्ट। We can do this by computing its NPV at the 10% discount rate we used above, computing the equivalent 4-year annuity with the same present value, ठीक है। तो दोनों काम हम करके देख लेते हैं इसके साथ। ये आपने क्या किया जी, ये उसकी एन्युटी हो गई 10% के ऊपर 4 ईयर्स के लिए, तो उसको उसमें इनिशियल आउटले को आपने उसके अंदर आपने ऐड ही कर दिया, समझ लें इसमें ऐड ही हो रहा है, दोनों माइनस माइनस है, तो -17.80 बन गया। तो आपका जो कैश फ्लो है वो क्या बनेगा जी,
कैश फ्लो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू को आप वहाँ पुट कर दें। प्रेजेंट वैल्यू आप इसी फार्मूले को रीएडजस्ट करके आप निकाल सकते हैं कि आपका कैश फ्लो कितना बनेगा। अगर आपका सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो कैश फ्लो कितना बनेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ सर्वर सी के अंदर हमें ये नहीं पता था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना यूज़ करें, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही यूज़ करते हुए आप कैश फ्लो निकाल सकते हैं, विच इज़ कम्स आउट टू बी the C's annual cost of 5,620 is greater than the annual cost of server 5,020, so we should still choose server A। तो आप उसको एक तरह से एनुटी में कन्वर्ट कर देते हैं इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यूज़, तो फिर उसको आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई जिसकी किसकी ये, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट में जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी कॉस्ट कम आ रही है तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इवैल्यूएशन इसकी क्या है? इन दिस केस द एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग एंड मेंटेन ए सर्वर सी इज नॉट वर्थ द एक्स्ट्रा ईयर वी गेट फ्रॉम चूजिंग इट। एक साल एक्स्ट्रा तो मिल रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। By putting all of these costs into an equivalent entity, the EAA tool allows us to see that ये एग्रीमेंट के लिए उसने लिखा है EAA, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यूएशन हो गई। एक नेक्स्ट उसने प्रॉब्लम इसी तरह का और भी दिया है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं तक मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए हमें। You are considering a maintenance contract from two vendors. Vendor Y charges 100,000 upfront. स्टार्ट में आप 100,000 दे रहे हैं एंड देन 12,000 पर ईयर फॉर द 3 ईयर, 3 साल का है, 3 ईयर लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेंडर जी चार्जेस 75,000 अपफ्रंट, ये कम ले रहा है, एंड 35,000 पर ईयर फॉर द 2 ईयर्स, तो वो 2 साल का है, ठीक है, लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंप्यूट द एनपीवी एंड ईएए फॉर ईच वेंडर एज्यूमिंग 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कहता है एनपीवी दोनों का निकालें इसका, ठीक है, और EAA भी निकालें। EAA अच्छा मैं बताता हूँ आपको एस्टिमेटेड एनुअल। अच्छा जी, ये टाइमलाइन बना ली वाई की आपने, 100,000 आपका आउटले, फिर 12,000 3 साल के लिए, ये 75,000 अपफ्रंट, फिर 35,000 दो साल के लिए। इन ऑर्डर टू कंपेयर द 2 पॉइंट्स वी नीड टू पुट both on an equal footing by computing its annual cost. We can do this by computing NPV. It's NPV at 8% discount rate we used above, and computing the equivalent annual annuity. ये EAA इसको लिख रहा था, equivalent annual annuity with the same present value, ठीक है। एक ही प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप उसको एनुटी में कन्वर्ट कर लेंगे कि उसकी एनुटी क्या बनती है। सो लेट्स सी, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करते हैं। ये देखें, आपने पहले एनपीवी निकाला, एनपीवी से निकाल के फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने कैश फ्लो निकाल लिया कि कितना कैश फ्लो बनेगा। तो कैश फ्लो निकालने का मतलब क्या है, इस एनपीवी के ऊपर, इस एनपीवी के ऊपर, ठीक है, इस एनपीवी के ऊपर आपका जो कैश फ्लो है वो क्या बनेगा। आप इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके यू कैन फाइंड द कैश फ्लो हियर। यहाँ तो कैश फ्लो आपका डिफरेंट रहा ना, इसमें तो आपकी बात ही डिफरेंट है ना, इसमें आपकी बात ही डिफरेंट है। इसमें आपकी बात यह है कि इनिशियल आउटले ज़्यादा है, फिर आप हर साल पे करें, इसको आप एन्युटी में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, इसको इक्वल एन्युटी के अंदर कैसे आप इसको कन्वर्ट करते हैं, वी आर सीइंग दिस। तो वही 8% के ऊपर रख के आपने प्रेजेंट वैल्यू ये वाली यूज़ करें और कैश फ्लो इसका निकाल लेंगे, तो इक्वल एन्युटी अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपके इक्वल एन्युटी अमाउंट आएगी तो यू कैन फाइंड कि विच वन इज अ बेटर वन, ठीक है। इसको दूसरे को किया इसी तरह से, वैसे ही किया, पहले एनपीवी निकाल लिया, एनपीवी निकाल के आप मैनिपुलेट करके कैश फ्लो निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी आपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रखना है। तो इसका आपका 77,058 आ गया, ठीक है। तो द एनुअल कॉस्ट ऑफ वेंडर Z इज ग्रेटर देन द एनुअल कॉस्ट ऑफ वेंडर Y,
सो वी शुड चूज वेंडर वाई। तो ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ एनपीवी रूल। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये उसकी वैल्यूशन आ गई। इन दिस केस द हायर अपफ्रंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेंडर वाई इज वर्थ द एक्स्ट्रा ईयर वी गेट फ्रॉम चूजिंग इट by putting all of these costs into an equivalent annuity। जब दोनों की एन्युटी को आप इक्विवेलेंट कर देते हैं तो फिर वो चीज खत्म हो जाती है। द इक्वल एन्युटी अमाउंट टूल allows us to see that। ठीक है, in the same way you can do evaluating projects with different lives। अगर डिफरेंट लाइव्स होंगी तो फिर कैसे आप करेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसे डिफरेंट लाइव्स ही आ रही थी। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस व्हेन यूजिंग द इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी रिक्वायर्ड लाइफ कितनी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है उसकी, ये इन दोनों चीज़ों को आप खास तौर पे कंसिडर करते हैं इसके अंदर। सो लेट्स सी चूजिंग अमंग प्रोजेक्ट्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अच्छा जी, ये नया टॉपिक आ गया हमारे पास, ये वही है बजट कंस्ट्रेंट के साथ है आपके। evaluating projects with different resources requirements। Sometimes different investment opportunities demand different amounts of a particular resources। If there is a fixed supply of resources, यानी आपके पास resources fixed हैं, so that you cannot undertake all possible opportunities, सारे projects नहीं ले सकते। Simply picking the highest NPV opportunity might not lead to the best decision। तो कहता है ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट एनपीवी अपॉर्चुनिटी को आप ले रहे हैं, हो सकता है वो आपका बेस्ट डिसीजन ना हो। कैसे, लेट्स सी, देखते हैं इसको। पॉसिबल प्रोजेक्ट्स फॉर $200 मिलियन बजट। आपके पास $200 मिलियन का बजट है, यू कैन स्पेंड $200 मिलियन बजट। आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी। ए के अंदर आप $100 मिलियन, आपके पूरे 200 में से $100 मिलियन लगा सकते हैं, और बी में आप 75 लगा सकते हैं, सी में आप $70 लगा सकते हैं अपफ्रंट जो आपके लगने हैं। ठीक है, ओह ये एनपीवी है, सॉरी। अपफ्रंट आपके इसमें $200 मिलियन लगेंगे, इसमें $120 मिलियन लगेंगे, इसमें $80 लगेंगे। ठीक है, $200 मिलियन इसके अंदर, 120 इसके अंदर, और इसमें $80। अगर ये बी और सी लेते हैं तो ये दोनों ले सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास $200 मिलियन है। तो 120 प्लस 80 200 बनते हैं। और अगर आप ए प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो फिर आप ए को ही लेंगे, फिर ये आप बाकी दोनों नहीं ले सकते। तो अभी हमने ये प्रूव करना है कि हमने हाईएस्ट एनपीवी ले तो लिया, लेकिन हो सकता है इन दोनों का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इसके एनपीवी से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनपीवी जितना भी हमारे पास आएगा, इसका एनपीवी आपने निकाला, इसका एनपीवी आया है $100 मिलियन का इजाफा करेगा, इसका $75 मिलियन का इजाफा करेगा, इसका $70 मिलियन टुडे, इसका $75 मिलियन टुडे, इसका $100 मिलियन टुडे है। ठीक है, एनपीवी का मतलब होता है कैश टुडे। इतना आपका इजाफा हो रहा है फर्म की वर्थ के अंदर। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे जी, आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट एनपीवी तो इसका है और पैसे सारे इसके सारे भी इसके अंदर लग रहे हैं, जबकि ये दो जो प्रोजेक्ट्स, अगर आप इसकी जगह ये दो प्रोजेक्ट्स ले लें तो इन दोनों की एनपीवी देखें तो इसकी कम है, इसकी कम है, लेकिन दोनों का आप कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो ये 145 बनती है। तो 145, जबकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, 200 मिलियन की रहेगी। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि आपका जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट एनपीवी ही बेस्ट हो, आपको प्रोजेक्ट्स को थोड़ा जरा और केयरफुली देखना पड़ेगा। आप नेट देखेंगे कि नेट आपका बेनिफिट कितना बनता है। लिमिटेड रिसोर्सेज अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा सकते हैं, तो जो अल्टरनेट आप लगा रहे हैं, 200 लगाते हैं एक जगह तो आपके सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए ना, उसी के अंदर आपने लगा दिए, तो उसकी एनपीवी भी हाईएस्ट आ रही है। लेकिन वही 200 आप स्प्लिट करके लगाते हैं और दोनों का जो अलग अलग आपका आता है एनपीवी, उनको आप अगर ऐड करते हैं तो वो उससे अगर बढ़ जाता है तो देन यू विल गो फॉर दैट। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके पास एक और चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है। ये तो हमने एनपीवी निकाला है ना, तो आप क्या करें, एनपीवी निकाल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दें। तो इसमें अगर जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.5, और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 120 है, 75 ओवर 120 करते हैं तो 0.625, इसको करते हैं 80 ओवर 70 तो 0.875। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो है
ये वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताती है हमें, लेट्स सी। अब हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, क्या बताती है हमें, ठीक है। चूजिंग among projects when resources are limited, evaluating projects with different resource requirements। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। बेसिकली ये जो हमने निकाला है अभी एनपीवी ओवर जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाला है, ये क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको हम। ये फोर्थ टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, और ये उन केसेस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों और एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हों। आप या तो अकेले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप एक अकेले प्रोजेक्ट को छोड़ के एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे करेंगे चेक, इस तरह से करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ करेंगे। तो जो वैल्यू क्रिएट हो रही है मींस एनपीवी आपकी आ रही है वो, और रिसोर्स जो कंज्यूम हो रहे हैं विच इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या आपकी इन्वेस्टमेंट अगर एक से ज़्यादा प्लेसेस के अंदर है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। प्रॉब्लम देखते हैं, योर डिवीजन एट नेट 8, a large networking company has put together a project proposal to develop a new home networking router. The expected NPV of the project is, NPV कितना है इसका 17.7 million है, and the project will require 50 software engineers. Net it has 190 engineers available and is unable to hire additional qualified engineers in the short run. Therefore, the router project must compete with the following other projects for these engineers. तो आपके पास 190 इंजीनियर हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कितने चाहिए इंजीनियर, 15 इंजीनियर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा नहीं इंजीनियर हायर कर सकते, और ये 190 इंजीनियर कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका डेटा आ रहा है यहाँ पे। राउटर वाला जो प्रोजेक्ट है ये एनपीवी दे रहा है, ये प्रोजेक्ट ए आपके पास है वो 22.7 मिलियन दे रहा है, प्रोजेक्ट बी 8.1 मिलियन दे रहा है, 14 ये दे रहा है, प्रोजेक्ट डी ये दे रहा है, प्रोजेक्ट ई प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो टोटल आपके पास 107.5 मिलियन डॉलर का एनपीवी बन रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग हेड काउंट क्या है कि इसमें कितने इंजीनियर चाहिए, 50 चाहिए, इसमें 47 है, इसमें 47 चाहिए, इसमें 44 चाहिए, इसमें 40 चाहिए, इसमें 61 चाहिए, इसमें 58 चाहिए, इसमें 32 चाहिए, टोटल तो 332 बन गया। जबकि आपके पास कितने हैं, आपके पास तो 190 हैं। अब आप कैसे करेंगे सिलेक्ट कि यही इंजीनियर्स हैं, आप नए इंजीनियर्स हायर नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दैट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, आप उनको पे नहीं कर सकते इस वक्त। तो आप इंजीनियर्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हाउ शुड नेटेड प्रायोरिटाइज दीज प्रोजेक्ट्स, तो आप इनकी क्या देखेंगे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे। लेट्स सी, प्लान करें। द गोल इज टू मैक्सिमाइज द टोटल एनपीवी that we can create with 190 engineers at most. We can use equation 8.4 जो पीछे हमने यूज की है to determine the profitability index for each project. In this case, since engineers are our limited resources, we will use engineering head count in the denominator. अब हमारे पास यहाँ पे इनिशियल आउटले तो नहीं है ना, हमारे पास तो इंजीनियर्स ही हैं, तो हम इंजीनियर्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इनिशियल आउटले एज अ डिनोमिनेटर, उसे डिवाइड करेंगे। Once we have the profitability index for each project, we can sort them based on the index. तो हम उसके इंडेक्स के बेस के ऊपर जो उसकी वैल्यू आ रही होगी उसकी बेस के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें 22.7 डिवाइड बाय 47.483, ठीक है। और फिर ये इसको डिवाइड किया ये आया, इसको डिवाइड किया ये आया, इसको डिवाइड किया ये आया। तो हम इसको ऐड भी करते चले जा रहे हैं, ऐड करते चले 187 हो गया। यहाँ पे 3 इंजीनियर्स बच गए हमारे। तो 3 इंजीनियर्स के साथ तो काम नहीं चलना ना, यहाँ पे किसी में भी 3 इंजीनियर चाहिए, ठीक है। ये आपका बन गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विद अ बजट और मनी कॉन्स्टेंट, उसके साथ ये बन गया। हमें क्या इसमें पता चल रहा है, हम इसमें प्रोजेक्ट ए, अच्छा इसने उसको तरतीब खुद लगा दी है, बाकियों में ज़्यादा चाहिए ना, इसमें 32 चाहिए, इसमें 58 चाहिए, 58 इसमें 50 चाहिए। अगर हम कोई से और लेते हैं, आप सबका बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं, और फिर उनकी कम्युलेटिव आप बनाएंगे कहाँ पे वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें हमारे थ्री इंजीनियर्स जो है वो फारिग बैठ रहे हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट में एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं दूसरे की।
लेकिन अगर कोई और हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो उसमें हमारे ज़्यादा इंजीनियर फारिग बैठेंगे, हम नया प्रोजेक्ट भी नहीं ले सकेंगे। आप इसको देख लें, इस तरह से आप इसको किया है। आप इसकी एवेल्यूएशन execution देखें। As shown in the table above, we assign the resources to the projects in descending order according to the profitability index. The final column shows the cumulative use of the resources. आपका इंडेक्स का मतलब जो पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद जो हायर वैल्यू है उसको आपने सबसे पहले लिया। और आप इसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे हमने कहा था हाईएस्ट एनपीवी लेते थे, अब हमने क्या किया, हाईएस्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, जो डेसिमल वैल्यू आपके पास आ रही है एनपीवी ओवर हेड काउंट की, इंजीनियर हेड काउंट की, वो जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है उसको सबसे पहले लिख रहे हैं और उन्हीं को आप ऐड करते गए और उसी हिसाब से आपने क्या किया है, उसकी आपने तरतीब भी चेंज कर ली है। ठीक है। The final column shows the cumulative use of the resources as each project is taken on until the resources is used up. To maximize NPV within the constraint of 190 engineers, NetEd should choose the first four projects on the list. जो लिस्ट में आपने लिखे हैं वो वाले, ठीक है, ABC नहीं, जो लिस्ट में टॉप पे आ रही हैं, जिनका इंडेक्स ज़्यादा था उनको आपने ऊपर लिखा और फिर आप ऐड करते गए कि कितने इंजीनियर्स बन रहे हैं उसके। ठीक है। इवैल्यूएशन देख लें इसकी जी। बाय रैंकिंग प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एनपीवी पर इंजीनियर। पर इंजीनियर मींस ये आपका इंडेक्स है, बेसिकली इंजीनियर से डिवाइड किया था ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से आपने इसको रैंक कर दिया, पहले हम एनपीवी के हिसाब से रैंक कर रहे थे। वी फाइंड द मोस्ट वैल्यू वी कैन क्रिएट गिवन आवर 119। सो हमने देख लिया कि हम मैक्सिमम जो वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं वो इसके साथ कर सकते हैं। देयर इज नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल क्रिएट मोर वैल्यू विदाउट यूजिंग मोर इंजीनियर्स देन वी हैव। तो कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हम नए इंजीनियर्स को हायर करें। दिस रैंकिंग also shows us exactly what the engineering constraints cost us. This resource constraint forces NetEd to forego three otherwise valuable projects C, D and B with a total NPV of 33.6 million. तो हमें ये छोड़ने पड़ेंगे, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास यही बेस्ट चॉइस। एक सिमिलर और एग्जांपल इसके अंदर दी हुई है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको आप खुद देख लीजिएगा। इट्स वेरी इजी गोइंग सेम वे। इसमें इनिशियल कॉस्ट दी हुई है, आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं और निकाला होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। अब देखें इसकी तरतीब उसने कैसे लगाई है। आपके प्रोजेक्ट तो ए बी सी डी ई एफ जी थे ना, लेकिन आप देखें जिसका पी आई ज़्यादा आया 0.88 सबसे ऊपर आ रहा है, फिर 0.6 है बड़ी वैल्यू, फिर 0.57 है, फिर 0.55 है, फिर 0.50 है, फिर 0.40 है, फिर 0.33 है। तो इस तरतीब से आपने लगाना है इसको। ठीक है। और आपका जो भी कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट को आपने यहाँ ऐड करते हुए आपने, ये कमुलेटिव है ना, इसमें आपको इनिशियल आउटले कितना था 40, ये 40, इसमें 25, तो 40 प्लस 25 65, कमुलेट करें, इसमें 35 ऐड किया है 100। तो इस तरह से आप लेके चल रहे हैं। तो जो आपके पास कंस्ट्रेंट होगा, जहाँ पे कंस्ट्रेंट आपका मीट कर जाएगा वहाँ पे आप रुक जाएंगे और वही प्रोजेक्ट्स ले लेंगे। ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन एवोल्यूशन सेम है। ठीक है, उसी को कंक्लूड कर रहे हैं जी। इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज तो कर लिया, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। वो क्या है? इन सम सिचुएशंस इट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट आंसर्स। कुछ सिचुएशन में ये सही आंसर नहीं देती, जो हम यूज कर रहे हैं ये हमें सही आंसर नहीं देता। इफ सम रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, यानी आपकी कुछ फ्रैक्शन बच जाती है ना, जैसे उसमें 3 इंजीनियर बच गए थे, अगर ज़्यादा बच रहे हो तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, कुछ रिसोर्सेज तो आपके अनयूटिलाइज रह रहे हैं ना, तो उसको फिर आप क्या करेंगे उसका। ठीक है, ये इसकी एक शॉर्टकमिंग है। ऑफ्टन बेनिफिशियल टू फोकस इंक्रीजिंग द बाइंडिंग रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, with multiple resource constraints the usefulness of the profitability index breaks down। इसमें हम सिर्फ एक constraint को देख रहे हैं ना, बजट constraint को देख रहे हैं या हमारे पास कोई सी एक रिसोर्स की कंस्ट्रेंट को देख रहे हैं। अगर कंस्ट्रेंट वो कहता है एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर कोई ऑल्टरनेट और मेथड्स होंगे जिनको हम यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। राइट जी।
अच्छा जी, पुटिंग इट ऑल टुगेदर वी हैव फिनिश एवरीथिंग। अब हम समरी देख लेते हैं। इसकी समरी आप देख लें, इसकी क्या बता रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, वो उसी को लिखे थे, और के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका रूल क्या है ये देख लें। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस एनपीवी के भी हैं। रिलाइज ऑन एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द डिस्काउंट रेट, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू कंप्यूट। तो आजकल के टाइम में तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कंप्यूट करना। आपके पास फिनेंशियल कैलकुलेटर्स भी हैं, आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स भी हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये तो ऑलमोस्ट डिसएडवांटेज जो है मेरे ख्याल में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। रिलाइज ऑन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द डिस्काउंट रेट, आपका जो डिस्काउंट रेट है वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक ना हो तो फिर एनपीवी आपका मिस गाइड करेगा आपको, ठीक है। इस तरह से IRR है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है। ये पे बैक पीरियड है और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। This is how we will finish our chapter. This is some of the questions for your brainstorming. You can discuss it कि आप कौन सी कुछ सिचुएशन में क्या करेंगे, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको देखें, आप इनके बारे में सोचें। इन क्वेश्चंस को मैं आपके उसके डिस्कशन फोरम में भी डाल दूंगा, आप इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है जी। And thank you very much for your time. I hope will ask questions. If you do have any question you must ask. तो मैंने एक सेशन के अंदर आपको ये करा दिया है। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस होगा, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर कोर्स, और वो हम करेंगे। दैट आल्सो लाइज अंडर दी कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग की बिल्कुल बेस है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं। कैपिटल बजटिंग बेसिकली आपकी किसी प्रोजेक्ट के बारे में होती है ना, तो उसका प्रोजेक्ट की कैपिटल बजटिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। फिर हम उसकी सेंसिटिविटी को देखेंगे, उसका डिफरेंट एनालिसिस हम उसका देखेंगे, उसको हम करेंगे। तो होपफुली दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।